We are already Facebook Live and we are YouTube Live also, sir, to the world. We are live to the world. Sir, check చేయండి బాబు అక్కడ. వెల్కమ్ టు డాక్టర్ టీఎస్పీఆర్ షో. నేను మీ డాక్టర్ తంగల్ల శివప్రసాద్ రెడ్డి alias డాక్టర్ టీఎస్పీఆర్. నమస్తే, ఆదాబ్, హలో. As we have decided on the topic really is creating ripples across India, and no wonder I'm doing this show from Kerala. The Kerala is the place from where all this fundamentalism, hooliganism, and పొలిటికల్ ఆపర్చునిజం హ్యాస్ స్టార్టెడ్. కేరళ నుంచే మొదలైంది. అందు గురించే కరెంటు తీసేసారు. మనకి ఈరోజు ముఖ్యమైన టాపిక్ అన్నాం. టీఆర్ఎస్ ఆల్ ఇండియా మజ్లిస్ ఇత్తెహాదుల్ ముస్లిమన్, కులమా, మతమా, రాజ్యాంగమా, ప్రజల? ఈజ్ ఇట్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్ పీపుల్? లెస్ట్ రిలీజియన్, caste politics, vote bank politics, which is more important? Because we the people, that is the constitution. మనము మన కోసమే రాజ్యాంగాన్ని మనకు సమర్పించుకున్నాం. संविधान अपने लिए, हम अपने लिए हमारा संविधान. क्यों आज ये संविधान को इस तरह मैं केरला से जो लाइव शो कर रहा हूँ, यहाँ पर भी पावर निकाल चुके हैं. क्योंकि ये जो संविधान को मानने का जो हिस्सा था, वो संविधान को ना मानते हुए केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स, और वो वोट बैंक पॉलिटिक्स में भी मज़हब को लेके आना केरला से शुरू हुआ. इसीलिए मैं जहाँ से शो कर रहा हूँ आज, इन स्पाइट ऑफ माई कंप्लेंट, मैं कंप्लेंट भी दे चुका हूँ KCB से लेके चीफ मिनिस्टर से ऑफिस से, कुछ नहीं हो रहा. क्योंकि मलाबार रीजन, इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लीग, और जहाँ हम रहते कैसे मनी, ये ग्रुप्स, एक जो है मज़हब, एक मुसलमान के मज़हब, इस्लाम के मज़हब एक चलता है पार्टियाँ, और एक ये सेंटर में जहाँ पाला, जहाँ से कर रहा हूँ मैं, कोटयम डिस्ट्रिक्ट, यहाँ क्रिश्चियन मज़हब से पार्टीज चलते हैं. इस तरह की साजिश हमारे संविधान के साथ हुआ है, और यही साजिश आज हैदराबाद और देश भर में हो रहा है. और इसीलिए हम आज शो इसीलिए हम लिए हैं. और हमारे गेस्ट आज सैयद तारक कादरी साहब जो है, एडवोकेट भी है, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत, अमेरिका से ज्वाइन हुए. और हमारे जाने माने मित्र दो भी, MN खान, हमारे MT खान साहब राज्यसभा के बेटे हैं, इज़ फ्रॉम कांग्रेस, ही इज़ ज्वाइनिंग फ्रॉम हैदराबाद. और हमारे गफ़र साहब, ये तो मेरे जैसे हमारे एक सामान्य है, पढ़े लिखे सो, जो संविधान के खातिर हम हमारे राष्ट्र और हमारे देश को चलाने की एक ताकत हम रखते हैं. वही ताकत में मेरे साथ में रहने वाले गफ़र आम आदमी पार्टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. वेलकम जेंटलमैन. सर, so we have taken a topic. Before I play videos, I will just take one comment. I'm doing my show, live show. This is a new technology. I'm connecting my guests and we are going live YouTube and Facebook to the world. And from where I am doing, all this religious fundamentalism, vote bank politics has started. Kerala, Malabar region, Indian Union Muslim League. And because I'm directly blaming them, let them show. And also Kerala Congress money groups. How many Hindus or Muslims or Sikhs or Christians are there in IUML? The same applies to KC money group, and no better than All India Majlis Ittehadul Musliman, represented by Asaduddin Owaisi and Akbaruddin Owaisi. Incidentally, it is become a curse for Telangana. They have become the opposition party, as people are claiming, not myself. People say because AIMIM has become an opposition party, it has become a curse for the state. Now, not only for state, now they are going, now he has gone to Bihar, I think I have to be confirmed by my gentleman. He is going around and professing AIMIM. And in AIMIM, I am directly challenging Asaduddin Owaisi. How many Hindus are there? How many Sikhs are there? How many Christians are there in your party? You let me know. Did anyone become a president of that party from other communities? I am challenging you. Then how can you are secular? How come you are representing the greatest constitution of India in letter and spirit? You say BCs, SCs, STs and minorities. Minorities were rulers till 1857. You carry that tag. Nizam was the ruler till we became independent. Then how is that you have become so weak? So that is, ये पते की बात है. अंदु गुरिंचे
స్వాతంత్రం వచ్చే వరకు అప్పుడు 1857 వరకు ఎవరు మనం పరిపాలించారు? ఈ స్వాతంత్రం వచ్చే వరకు 1948లో ఎవరు పాలకులు? మరి ఈయన వచ్చి ఈరోజు కొత్త నేపథ్యం బీసీలు, ఎస్సీలు, ఎస్టీలు, మైనారిటీలని మిగతా జనం ఏం చేశారు? కులాల మీద, మతాల మీద రాజ్యాంగ ఉల్లంఘనలకు పాల్పడుతున్న ఇటువంటి పార్టీలను ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎందుకు దీన్ని బహిష్కరిస్తలేదు? ఈక్వల్లీ దే ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్, ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా, వెదర్ ఏఐఎంఐఎం, IUML or KC Money Groups here in Kerala. This is nonsense. This is not India, and we are bound by constitution. What the hell is happening? How long we should suffer to these religious minded vote bank politics? This is nonsense. Hyderabad has lost precious lives. People are getting washed away in so-called Dallas, so-called Istanbul. What to say? This is horrible. First comment, Mr. Ghaffar. సార్ ఇది ఇప్పుడు మనము నేను మీరు హైదరాబాద్ లో వరదల గురించి దాని గురించి మాట్లాడదామని మజ్లిస్ అండ్ టిఆర్ఎస్ గురించి అని క్యాప్షన్ పెడితే నేను దాని గురించి ప్రిపేర్ అయ్యాను. దాని గురించే ఎందుకంటే IUML గురించి లేదు ఇవన్నీ ఎందుకంటే ఇక్కడ మొదలైంది కాబట్టి మనం ఒకటే మనకు రాజ్యాంగం हमारा संविधान constitution what does it say? Does it allow us to be divided in the name of caste, creed and religion? And again they are playing the same vote bank politics in Hyderabad floods also. That is what I am trying to relate. We are all humans. మీరు అన్నది I am agree with you 100% కరెక్ట్. మన కాన్స్టిట్యూషన్ వచ్చేసి మన హైయెస్ట్ ఏదైనా ఫాలో అయ్యేది ఉంటే ఇండియాలో కాన్స్టిట్యూషన్ ఓన్లీ అల్టిమేట్ ఫాలో అయ్యేది కాన్స్టిట్యూషన్. అంత మించి ఎవ్వరు ఎక్కువ కాదు. అయితే ఏంటిదంటే ఇప్పుడు మన దగ్గర పీపుల్స్ ఒక ఎడ్యుకేషన్ లేకపోవడం వల్ల, ఒక ఎమోషనల్ పీపుల్ ఉండడం వల్ల వాళ్ళ యొక్క భావోద్వేగాలతో ఆడుకోవడం గురించి ఓట్ బ్యాంక్ పొలిటిక్స్ నడుస్తుంది. ఆ ఓట్ బ్యాంక్ పొలిటిక్స్లో భాగంగానే క్యాస్ట్, రిలీజన్ అండ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ జెండర్ చాలా రకాల డివిషన్స్ని, డిస్క్రిమినేషన్ని అండ్ అసమానతల్ని వాళ్ళు అడ్వాంటేజ్గా తీసుకొని పోలరైజ్డ్ పాలిటిక్స్కు పాల్పడుతున్నారు. అయితే ఇప్పుడు ఈ స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మన యొక్క సహజ భారతదేశ సంపద అందరికీ అది చేరకపోవడం వల్ల కొన్ని డిప్రెస్డ్ క్లాసెస్ పేరు చెప్పుకొని ఇట్లా ఒక మైనారిటీలకు ఈ స్వాతంత్ర ఫలాలు అందలేదు, వాళ్ళు చాలా లో లెవెల్ లివింగ్ స్టాండర్డ్స్లో ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ లేదు, ఎంప్లాయ్మెంట్ లేదు, వాళ్ళ లివింగ్ స్టాండర్డ్ చాలా లో ఉన్నాయనే వాయిస్ మీద కొన్ని పొలిటికల్ పార్టీలు ప్లాట్ఫామ్ ఏర్పాటు చేసుకొని పోలరైజ్డ్ పాలిటిక్స్ చేస్తున్నాయి. అది ఎప్పుడైతే భారతదేశము ఎడ్యుకేషనల్లీ ప్రతి ఒక్క సిటిజన్, నాగరికుడు అవేర్నెస్ చెంది రాజ్యాంగం యొక్క విలువని అర్థమైనప్పుడు వీటిని మనం అరికట్టవచ్చు. రెండోది, వీటిని అరికట్టాలంటే ప్రభుత్వము, న్యాయస్థానాలు, రాజ్యాంగబద్ధ సంస్థలు, ఎలక్షన్ కమిషన్ మీరు అన్నట్టుగా వాళ్ళు చాలా స్వతంత్రంగా, ధైర్యంగా వ్యవహరించాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఈరోజు కోర్టు, న్యాయస్థానాలు, స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి గల సంస్థలు కానివ్వండి, మీకు ఈ ఎలక్షన్ కమిషన్ లాంటి సంస్థలు కూడా ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయినట్టుగా సమాజంలో ఒక అనుమానం ఏర్పడుతున్నది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో స్వతంత్ర సంస్థలే దీన్ని కట్టుబడి చేయగలవు. ఈ ఓట్ బ్యాంక్ రాజకీయాలు, ఈ స్వతంత్ర సంస్థలు, యాక్టివిస్టులు, మీలాంటి జర్నలిస్టులు దాని మీద వాయిస్ రేస్ చేసినప్పుడే ఇది కంట్రోల్ అవుతుంది. కానీ అంతవరకు ఇది ఇట్లనే నడుస్తుంటున్నది. దీన్ని కంట్రోల్ చేయాలంటే దాని ఉద్దేశంతో ఇప్పుడు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ వచ్చింది. ఢిల్లీలో సివిక్ సెంట్రిక్ డెవలప్మెంట్ వాయిస్తో వచ్చింది. కంప్లీట్ టోటల్ కరప్షన్కి అగ్నెస్ట్గా వచ్చింది. అది 3 times గెలిచి అక్కడ గవర్నెన్స్ చూపెట్టింది. సెకండ్ టైం ఏదైతే నిన్న 2019లో ఫిబ్రవరిలో 20లో పార్టీ గెలిచింది, కంప్లీట్ అభివృద్ధి రాజకీయాలు, సివిక్ సెంట్రిక్ డెవలప్మెంట్, ఓన్లీ పీపుల్స్ ఎజెండా, ఎడ్యుకేషన్, హెల్త్, లోకల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, దీని మీదనే డెవలప్మెంట్ జరిగింది. ఆ ప్రభుత్వానికి గెలిపించినారు ప్రజలు. అయితే ఆ విధమైన రాజకీయాలకి ఇండియాలో స్కోప్ ఉన్నది. అయితే అలాంటి పార్టీలు కూడా అన్ని వాటి మీద మాట్లాడినప్పుడు ఆ యొక్క మార్పు, ఈ కుల పార్టీలు, మతతత్వ పార్టీలు అనేది
ఆటోమేటిక్గా ఎరాడికేటెడ్ అయిపోతాయి. అంటే ఆ రకమైన రాజకీయాలని ఎంకరేజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది. వండర్ఫుల్. మళ్ళీ మీ దగ్గరకు వస్తాను హైదరాబాద్ ఫ్లడ్స్ గురించి, ఎందుకంటే అందరూ ఒక్కొక్క నిమిషం మాట్లాడిన తర్వాత ఐ హ్యావ్ టు ప్లే ది వీడియోస్. खान साहब। जी साहब, मेरी आवाज़ आ रहा था क्लियर? आ रहा बाली बोलिए। अब एक एक मिनट बात करने के बाद मैं वीडियोस प्ले करने के बाद फिर जाएंगे अपन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके शो के माध्यम से हमारे गफ्फार साहब की पार्टी को धन्यवाद देता हूं एज ए तेलंगानाइट, क्योंकि मैं भी इस तेलंगाना का ही रहने वाला हूं। और हमारे जो आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है, आज जो हालात तेलंगाना में, जो हैदराबाद में स्पेशली चंद्रायन गुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी तो पूरा तालाब बन चुका है। हेलो, హ్యాంగ్ हो चुका है। మీకు వినిపిస్తుందా గఫర్ సాబ్? మీరు వినిపిస్తున్నారు, వారు వినిపించట్లేదు. మరి అదే అక్కడ హ్యాంగ్ అయింది, అక్కడ ఏదో చేసి అంతా ఇది జస్ట్ कादरी साहब आप बात करिए साहब। रेड्डी साहब, रेड्डी साहब। यम जी हाँ, मैं सबको सलाम नमस्ते बोलता हूँ। और जो है हमारा आज का टॉपिक ये है कि हैदराबाद में सैलाब और 60 साल से की हुक्मरानी के बावजूद, तो इस सिलसिले में मैं 4 एस्पेक्ट्स पे मैं डिवाइड करूँगा। एक तो जो है हमने क्या हेरिटेज हासिल किया, कुतुब शाही आसिफ जाही बादशाहों ने तकरीबन 2800 टैंक्स तालाब के जरिए अपने को पानी पहुंचाने का एक सिस्टम डेवलप किया। सर विश्वेश्वरैया इंजीनियर, अली नवाब जंग और दूसरे कई इंजीनियर्स के खिदमत हासिल करते हुए डेवलप किया। और वो 2800 जो है तालाब कुंटे जो सिस्टमैटिक अंदाज से पानी पहुंचाते थे, मूसा नदी के जरिए जो पानी साफ आता था, आज जो है हमारी क़ियादत, हमारी पुराने शहर की क़ियादत में अगर कहूँ तो जो है उनकी सरपरस्ती में 2800 टैंक बेड जाके वाटर बॉडीज जाके ख़त्म करके 200 है, 200 बाकी हैं। तो फिर जो है बारिश पड़ी तो पानी कहाँ जाएगा? आप ही के घरों में, आप ही ने घर में पानी मंगवाया है, तो आप जिम्मेदार हैं। और कमाल ये है, वोल्टा एक्ट है, वोल्टा एक्ट के जरिए जो है वाटर बॉडीज को सेफगार्ड करने का प्रोविजन है। हर 3 महीने में कलेक्टर साहब को मीटिंग जो है कन्वीन करना है। आज 6 साल से मीटिंग ही कन्वीन नहीं हुई। और वही जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का जो है चेयरमैन हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं। चीफ मिनिस्टर साहब जो है आज तक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मीटिंग कॉल फॉर ही नहीं की 6 साल से। तो दिस इज अवर एटीट्यूड ऑफ द रूलर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज दैट हैज टू बी क्वेश्चन्ड। अरे यू हैव अलाउड देम टू लूट पब्लिक प्रॉपर्टीज, यू हैव अलाउड देम टू लूट नेशनल एसेट्स। ये इट्स अ नेशनल एसेट, वाटर इज अ नेशनल एसेट। और आप जो है कोई भी जो है काम जो है उनको सपोर्ट में करते जाके, उनको सपोर्ट करते हुए जियो 192 ऑफ 1994, जियो 111 ऑफ 1996, it prohibits construction of any activity being taken between 10 kilometers within the water body's reach। हमारे अकबर साहब का लीडर ऑफ ऑपोजिशन का फार्म हाउस है गंडीपेट के पास, के पास। फिर जो है वैसे ही केटी रामाराव साहब के ताल्लुक से भी ऐसे इत्तलात हैं। तो फिर ये क्या हो रहा है, ये कौन पूछना? ये अब गरीब आवाम तो मर रही, गरीब आवाम का घर चले गया, बह गया, सामान बह गया, लाशें निकली। मेरा सवाल ये है, हैदराबाद में भी बारिश हुई, सिकंदराबाद में भी बारिश हुई, सिकंदराबाद में महफूज क्यों है? व्हाई इज सिकंदराबाद सेफ कंपैरेटिवली देन हैदराबाद? Who is to be questioned? We are having 60 years leadership there. They have not done anything. They have only benefited. किराए के घर से पैलेस में चले गए। आप गरीब तो गरीब ही रहा ना। तो इसके लिए आवाज उठाना चाहिए, ये राइट टाइम है। अगर आवाज नहीं उठाएंगे, सिर्फ खाली और कमाल की बात ये है रेड्डी साहब कि they don't want anybody else to enter Hyderabad।
अरे आप तो कॉन्स्टिट्यूशन को कोट करते हुए, प्रिंसिपल्स को कोट करते हुए बिहार जाते, गुजरात जाते, यूपी जाते, महाराष्ट्र जाते, इलेक्शन लड़ते, और आप ओल्ड सिटी पे क्या छुपाना चाह रहे हैं? आप पब्लिक से क्या छुपाना चाह रहे हैं? पूरी वर्ल्ड जान रही, हम अमेरिका में बैठ के सब जने हंस रहे हैं हमारे को, अरे ये कैसे लीडरशिप है कि जो है 60 साल में कुछ भी डेवलप नहीं करे। बोला कैसा नहीं डेवलप करे, 60 साल में ऐसा माफिया डेवलप करे। अगर मैं इजाजत दे तो बोलूंगा कि our religious leaders are also responsible in having a tie up in nexus with these people. उन लोगों की भी कुछ कमजोरियां हैं, तो वो लोग जो है हमेशा इनका साथ देते हैं। क्यों भाई, 7 साल से अगर कोई जो है मीटिंग नहीं हुई है वॉल्टा एक्ट के तहत, 7 साल से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत नहीं हुई है, तो हमारी लीडरशिप का काम नहीं है। लीडरशिप तो खाली सोती है। परेशानी जो गरीब आवाम की है, और इस्लाम ने औरत को ऐसा मकाम दिया है कि अगर माँ है तो उसके कदमों के नीचे जन्नत है। हदीस में प्रॉफिट्स वर्ड्स आर देयर कि माँ के कदमों पैरों के नीचे जन्नत है। अगर बीवी है तो उन रास्ता बताती है, ईमान का आधा तकमील होता है। और अगर बच्ची है उसको पढ़ा लिखा के अगर शादी करे तो जन्नत का रास्ता बताती है। आप जो है जब कांग्रेस का डेलीगेशन आता है ओल्ड सिटी को, शब्बीर साहब और उनके साथ दूसरे जो लोग हैं आते हैं, तो उनको रोका जाता, मारा जाता, और मारने की गड़बड़ होती, गाली गलौज किया जाता, और औरतों को लाके छोड़ो फेंको बोल रहा। कितनी इससे बढ़ के निचली सतह क्या हो सकती है? हाउ डिग्रेडेड वी हैव, हाउ डिग्रेड वी आर। अरे we have brought down the level of the status of women to sex objects. अरे जब तो इस्लाम, फिर आप इस्लाम की दुआई देते असद साहब, और आज सेंट्रल जो है कमेटी आके दौरा कर रही, तो आप जो है आगे बढ़ के ले रही, तो उनको भी बोलना था नहीं आना बोल के। फिर कैसा लेके बुला रहे उनको, इसलिए बुला रहे फंड्स आते, फंड्स आए तो यू गेट अ स्लाइस ऑफ दैट। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? पीपल शुड रेज द पब्लिक को मैं जो ये ख्वाहिश कर रहा हूँ कि आवाम जो है आवाज उठाएं। बहुत हो गया, अभी तक आप 60 साल में बहुत जो है हमारी बर्बादी कर दी है। आप किराए के मकान से, आप पूरी फैमिली तो पैलेसेस में है, करोड़ों रुपए के प्रॉपर्टीज है, फिर गरीब आवाम जाके वहाँ है, तो ये कौन पूछना? और चंद्रशेखर राव साहब से मैं ख्वाहिश करूंगा कि चंद्रशेखर राव साहब प्रगति भवन से बाहर आए। आप सिर्फ खाली जो है, मैं जरूर जो है हम इंसानियत, ह्यूमैनिटेरियनिज्म ये चाहता है कि आप होम मिनिस्टर नयना नरसिम्हा रेड्डी साहब की जो है तबीयत पूछे, उनकी मौता में जाएं, हमारा कोई इतराज नहीं है। आप वहां जा सकते, आप शादी में असद साहब की बेटी की शादी में जा सकते, मगर नहीं जा सकते तो ओल्ड सिटी को नहीं जा सकते। तो ओल्ड सिटी के वोटर्स ने, मैं ये नहीं बोलता कि हिंदू मुस्लिम की लाभ नहीं हो रहा, ओल्ड सिटी के वोटर जिम्मेदार है कि उन लोगों ने अपने वोट की वैल्यू को गिरा दिया है। ओल्ड सिटी के वोटर्स जो है उनसे क्वेश्चन करना, क्यों? उन लोग को ये समझ रहे हैं कि 500 रुपए दे, वोट लें, खत्म, आपको भूल जाए। ये नहीं है डेमोक्रेसी, ये नहीं है डेमोक्रेसी। ये है कि हर एक का तरक्की होना है। फिर क्या तरक्की की है आप ओल्ड सिटी में? पूरे जो है 2800 वाटर बॉडीज जाके 2000 है, 200 है। सेंट्रल कमेटी से मैं ख्वाहिश करूंगा कि इन लोगों के ऊपर जो है बुक करें केसेस। इट इज क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ऊपरहार दिल्ली का जो है सिनेमा में अंगार लगती है तो उस पर केस बुक होता है। आज तक केस किसी के खिलाफ भी बुक नहीं हुआ। हमारे को तो इत्तलात नहीं है कि कौन से लीडर आखिर जो 2800 कौन खा गया, शेर खा गया, बबर खा गया, कौन से शख्स खा गए। किलिंग करना, प्लॉटिंग करना हमारा प्रैक्टिस हो गया ओल्ड सिटी में। तो इसके लिए आप, मैं तो ने हमारे ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत पार्टी की तरफ से बैठे थे प्रेसिडेंट, मैं यहाँ से कंसल्ट करके डीजीपी, सीएम, चीफ सेक्रेटरी को रिक्वेस्ट किया हूँ कि इनके खिलाफ केसेस बुक करें जिन्होंने वाटर बॉडी से छेड़छाड़ की है, और जिसका नतीजा ये निकला है कि इतने लाशें निकले हैं। और फिर सीएम साहब तो जो बोल रहे हैं कि 67 करोड़ जो ओल्ड सिटी में खर्च किए हैं, किधर हमारे तो दिखता नहीं। मेरे भाई खान साहब हैं या गफ्फार साहब हैं, आप बताइए कि हमारे को उतना खातिर खा जो है जो है
डेवलपमेंट दिखता है ओल्ड सिटी में। ये क्या हो रहा है ओल्ड सिटी में? और बारिश ओल्ड सिटी में भी पड़ती है, न्यू सिटी में भी पड़ती है। शास्त्रीपुरम पे डेवलपमेंट नजर आ रहा था खाली, ओल्ड सिटी में शास्त्रीपुरम पे डेवलपमेंट नजर आ रहा, एक पैलेस का डेवलपमेंट है। हाँ, तो ये चीजों को हाईलाइट करना चाहिए। आप जैसे लोग, हम जैसे जो अफराद जो है हाईलाइट करना चाहिए। वोट देना नहीं देना पब्लिक का काम है, लेकिन 60 साल के बाद भी कुछ भी नहीं। आपको कॉलेज दिए तो कॉलेज में सीटा बेच लेते, आपको जो है कॉलेज दिए तो वहाँ के एम्प्लॉयज को तनख्वाह कम देते, आपको जो है वक्फ बोर्ड का आप जो इतना इंटरेस्ट बताते, 1 साल से बढ़ के हो गया। आप MP बन के वक्फ बोर्ड के मेंबर नहीं बने। अंडर द एक्ट यू हैव अ राइट टू बी ए मेंबर MP कोटा में। ये क्या खेल हो रहा? और इसके लिए हमारे रिलीजियस लीडरशिप भी जिम्मेदार है। रिलीजियस लीडरशिप इसलिए जिम्मेदार है और इसलिए खामोश बैठ रही है कि उनका भी जो है कुछ कारोबार में हिस्सेदारी है। तो वो लोग भी जो है, तो गरीब आवाम को ये बतलाना चाहिए अपने चैनल के जरिए कि भाई आप लोगों का जो फायदा कुछ नहीं हो रहा, आप लोगों का फायदा नहीं नुकसान ही हो रहा। ये सिर्फ जो जलसे करना। मेरे आका जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तालीमात दी? हर गरीब की जो है मदद करना। अल खल्क़ु अयालुल्लाह, ह्यूमैनिटी इज द फैमिली ऑफ गॉड। The best among you is the one who is beneficial to all of them, not for only Muslims, for all human beings. हमारे को जो ये तालीम को आम करना है, कुछ कर रही नहीं। और अगर मैं ये बतलाते चलूं कि सेकंड खलीफा तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात में उठ के रोते थे, तो उनकी बेगम, उनकी वाइफ जो है पूछते थे, बीबी आतिका नाम है उनकी वाइफ का, क्यों रो रही? तो अगर मेरे से क़यामत के दिन पूछा जाए कि मैं जो है रोड नहीं बनाने से खच्चर को ठोकर लगी, मैं क्या जवाब दूंगा? अगर दजला के किनारे अगर बकरी भूखी मर गई, तो अगर मुझे सवाल हुआ बकरी भूखी कैसा मरी, तो मैं क्या जवाब दूंगा? आज आपके काम की वजह से कई लोग कितने 15 दिन से भूखे मर रहे हैं, कई लोग मर गए, कई लोग को पीने को पानी नहीं है। क्या है ये ना इस्लामिक टीचिंग्स पे है, ना कॉन्स्टिट्यूशन क्या है इस्लामी की टीचिंग? हर मजहब पे अच्छा ही रहते, फिर क्या है ये कौन पूछना? आवाम को उठना चाहिए। बहुत हो गया है अब हमारे को। और मेरी दरख्वास्त है कि अब TRS ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी है, GHMC है, इतने जो उनके पास ओवरलोडेड है, इतनी मेजोरिटी है। अब क्या है, ऑपोजिशन पार्टीज को स्ट्रॉन्ग कीजिए ताकि आपकी आवाज उठाई जाए। फ्रेंडली ऑपोजिशन को मत कीजिए। मैं इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ, इन द इंटरेस्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट एंड द कंट्री एंड आवर पीपल के जो है आवाज उठाइए। आवाज नहीं उठाएंगे, आप ऑपोजिशन को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, फ्रेंडली ऑपोजिशन को देते जाएंगे, तो आप अभी तो 60 साल 70 साल में आप इतना पानी में बह गए 70%। अभी एक 10 साल लाए तो पूरा बहा देते उन लोग ही पैलेसेस बना लेते। खान साहब आप फिर आगे जुड़ गए हमारे से। आप तो दो बात करने के बाद मैं थोड़ा वीडियोस प्ले करूंगा। हमारे अफसर साहब को कि भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपकी पार्टी की तरफ से जो हमारे स्टेट के लिए जो 15 करोड़ रुपए की इमदाद जो सो हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर करे। इसी तरीके से कई स्टेट्स के CM आ रहे। ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि 37,000 फैमिलीज एज ऑन पेपर रिकॉर्ड 37,000 फैमिलीज जो अफेक्टेड रहे इसके फ्लड्स की तरफ से। स्पेशली जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया रहा वो चंदन गुट्टा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, जहाँ से अकबरुद्दीन अवैसी जो मजलिस के जो सो फ्लोर लीडर है असेंबली में, उनका सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया रहा। और जो सो मैं उनसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि 37,000 फैमिलीज को आज जो सो KCR जो सो उनको भीख देते हैं तो वो खैरात बांटे वैसा 10-10 हजार रुपए बांट लेते फिरते। और आज एक एक घर के अंदर जहाँ पर उनका फर्नीचर जो आम आदमी है वो इस खरीद से परेशान है, और उनके लिए मदद करने के लिए आज MP साहब और इनके MLA खुद जो 10-10 हजार रुपए बांटते फिरे, वो भी गवर्नमेंट से दिया गया पैसा। एक रुपए की ये जाके केरला में, बिहार में, वहाँ जहाँ जहाँ इनको मौका जो सो अपनी पॉलिटिक्स चमकाने का मिला, वहाँ पे लोगों के पैसे जो सो बांट के जो सो हम बांटे बोल के बोले। आज हैदराबाद के अंदर 1 रुपए का भी ऐलान नहीं किया गया। तो मेरा सवाल यही है कि ये लोग कब तक, और जैसा हमारे खादरी साहब बता रहे थे, ये जो गुज़िश्ता वाकया जो है लास्ट वीक का था, लास्ट फ्राइडे के दिन हम लोग यानी कि ओल्ड सिटी में गुंडागर्दी इस कदर बढ़ गई है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को भी, अफसोस की बात यह है कि आप
देखेंगे तो कई वीडियोस में पुलिस ठहरी हुई है सामने। पुलिस के होते हुए मतलब पुलिस वालों इतना भी जो वो नहीं कर रहे कि ये जो गुंडे जमा हो रहे हैं मजलिस के, इनको रोका नहीं जा रहा है, बल्कि ये लोग आंगों पे आ रहे हैं। और जैसा कि औरतों की अजमत की बात हमारे खादी साहब कहे थे, उस वक्त में वहीं पे था चादर घाट का जो लो लाइंग एरिया था, उस लो लाइंग एरिया के अंदर बहुत सारे लोग मुतासिर हुए। तो हमारे कांग्रेस की जानिब से जो माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से कुछ इमदाद करने के लिए शबीर अली, क्योंकि वो माइनॉरिटीज की बिलोंग करते, तो वहां पर जाकर कुछ खाना वगैरह कुछ कपड़ा बांटने का प्रोग्राम था। तो जिस किस्म की गुंडागर्दी है, एक चादर घाट बल्कि नहीं, इनके साथ के साथ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इनके गुंडे जो पाले जो गुंडे हैं, और यही लोग जिम्मेदार हैं जो तालाबों को कब्जा करके, कादरी साहब जो बताते हैं हजारों तालाब जाके सौों में कन्वर्ट हो गए। आप ऐसे कई जो सो तालाबे हैं जिनको कब्जा करके खत्म कर देगा। और इतने बहुत ही जो सो बुरे हालात से आज जो सो हैदराबाद के बिलखसूस चंद्रायन गुट्टे के मुसलमान और दूसरी जो लोग हैं वहां पर मुसलमान के साथ साथ, अभी जो बहुत अच्छा सवाल जो कादरी साहब करें कि हैदराबाद जहां पर 60 साल से एक ही आदमी की एक ही पार्टी की जो क़यादत चल रही, बल्कि राज चल रहा उनका, वहां पर ये हाल है। और उसके बनिस्बत सिकंदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी, वो भी तो कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पर कई पार्टीज के जो रिप्रेजेंटेशन आए और गए, तो फिर वहां पर क्यों इफेक्ट नहीं हुआ? इससे ये जाहिर होता है कि AIMIM अपना जो पब्लिक को डरा के धमका के अपना जो राज चला रहे हैं, वो राज जो जिम्मेदार है। और आज हम तमाम जो हम लोग हैं उन सबको ये चाहिए कि हैदराबाद के लोगों को चाहिए कि अब इनकी गुलामी से बाहर निकलना चाहिए। डेफिनेटली मैं आप एक बार मैं वीडियोस भी आपको प्ले करके फिर मैं अब डिस्कशन में जाता हूँ, क्योंकि अपने को यहाँ पावर भी निकाल चुके हैं। ये बदमाशी है, ये यहाँ की सरकार भी उनसे मिले हुई है, मालूम है ना आपको, समझ सकते हैं ना आप पूरे। आप इस तरह की बदतमीज़ी चल रही है आपस में, लोगों के खैर नहीं रखना, लेकिन अच्छा एक डिस्कशन नहीं होना, इनके यही मतलब यही है इनका। तो इसीलिए मैं एक बार मैं थोड़े चंद वीडियोस है गफ़र साहब, ये प्ले करके जी जी लेट अस, क्योंकि పీపుల్ హ్యావ్ బీన్ కంట్రిబ్యూటింగ్, జర మమ్మల్ని మర్చిపోకండి సార్, ఎమ్మెల్సీనో ఇప్పించాలి ఉద్యోగులు। और ये और एक ఈ మాత్రం ముందు జాగ్రత్త లేకపోతే హైదరాబాద్లో బతకలేం మరి। देख रहे हैं ना कैप्शंस कैसे आ रहे। जी 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 और एक साहब पूछ रहे हैं यहाँ प्लम्बर की कॉल చేయాలా లేక इलेक्ट्रिशियन की कॉल చేయాలా, क्योंकि उसमें प्लग्स में भी पानी आ रहा। जी हाँ। और ये हमारे कादरी साहब फ्रीडम फाइटर्स जो भी आवाज़ उठाए उनको किस तरह ये कर दिया गया, ये लोग जो भी आवाज़ उठाए उनकी आवाज़ बंद किया गया, ये गुंडा राज के वजह से। शेम। और ये जो मैं बता रहा हूँ जिस तरह आक्रमण हुआ तालाबों का, ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सलेंस बंडलगुड़ा, साइकम चरुवु, इफ़ आई एम रॉन्ग ओवैसी साहब आप मेरे को करेक्ट कर सकते हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब यू आर एन अपोजिशन लीडर, क्योंकि KTR KCR साहब दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, नाउ यू कैन करेक्ट, यू आर एन अपोजिशन लीडर। साइकम चरुवु में है या नहीं ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सलेंस बंडलगुड़ा? Can this activity go on without the connivance of the government? That's what. Without the government officials? That's what. ये सब बता रहा हूँ मैं आपको, पूरे गूगल मैप से सभी लोग देख सकते हैं आप। अगर अपोजिशन लीडर ही इस तरह की बर्ताव करता है, अगर लेक्स को इस तरह आक्रमण करता है, ये पानी वहाँ रहने के बजाय घरों में कॉलोनियों में आ रहा, ये सही है नहीं? आप सोचिए लोग। और थोड़े चंद वीडियोस मैं आपको प्ले करने वाला हूँ आज, क्योंकि there are at least some leader people are there who are trying to question the government. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तमाम हैदराबाद की आवाम जो इस वक्त बहुत बारिश की वजह से जो परेशान हैं, जो लोग की जान माल का नुकसान हुआ मामूल के साथ में, मेरा ख़ास तौर पे स्टेटमेंट देने की वजह ये थी कि आज 8वां दिन है बारिश, 1.5 घंटे की बारिश में हैदराबाद का आधे मकान टूट चुके हैं, लोगों के घर में सामान रह चुका है, लोगों के रक्षे ऑटो आप तो न्यूज़ में देख रहे होंगे। लेकिन हैदराबाद के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव जो है आज तक स्टेटमेंट नहीं दिए।
उन्होंने अपने बेटे केसीआर को केटीआर को भेजकर या उनकी बेटी को भेजकर ये जो है लोगों को कर रहे हैं। तो आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ हमारे सीएम चंद्रशेखर राव से कि आपको हैदराबाद की आवाम सिर्फ आपको या आपके बेटे को की वजह से लिए थे। आप फुटपाथ से निकाल कर आपको जो है चीफ मिनिस्टर की कुर्सी बिठाए, तेलंगाना आंध्रा करोगे, और आप आज जो है असदुद्दीन जोकर पंडित की शादी, बेटी की शादी थी, तो आप जाकर जो है आप उसके साथ फोटो खिंचा के आप सीएमओ पेज से डाले कि मैं आज असदुद्दीन अवैसी की बेटी की शादी अटेंड करूँ। कि आवाम आपको इसलिए लेके आई थी, आज आवाम हैदराबाद की ओल्ड सिटी की आवाम के पास पीने के लिए पानी नहीं है। तो जो लोग एक ही घर के जो है लोग 8 मर गए, आपका बेटा जो है केटीआर साहब और जोकर जो है 5 लाख साहब आप बाकी लोग थोड़ा म्यूट कर लीजिए ताकि ये आवाज़ सीधा जाता है लोगों के पास, क्योंकि आपका क्रॉस बीच में आ रहा। देकर जो है उनको जो है आप जो है फोटो सेशन करा रहे हैं। और खास तौर पर जो है मैं माफी चाहता हूँ आवाम से कि मैं एक छिछोरे जोकर की बात कर रहा हूँ। हमारे पास जो नौकर से भी बड़ी तेजी से बात करते हैं, तो उस कुत्ते जो रहते हैं तो कुत्तों को जो है आइए जाइए नहीं बोलते, तो असदुद्दीन अवैसी जोकर को बोल रहा हूँ कि तू अपने आप को जिला के बिहार में जाकर जो है नीतीश कुमार पर कांग्रेस ने बोल रहा कि तुम 10 साल में क्या करें, 5 साल में, तू 50 साल तेरे को हैदराबाद की आवाम तेरे को वोट डाली, हैदराबाद की आवाम तेरे को जो है तेरे डिप्टी मेयर जो है 3 में एक बार मेयर था, 3 बार तेरे डिप्टी मेयर थे, स्टैंडिंग काउंसिल तेरा है, 50 कॉर्पोरेटर तेरे थे, तू हैदराबाद के बल्लागुड़ा, बाबा नगर ये बस्तियों में तेरा भाई चंद्रागुट्टे का जो है एमएलए उसका बारकस का एमएलए है, तू आवाम के लिए क्या करा? आवाम तेरे को आज खोज रही है, जहाँ भी लोग जा रहे तेरे लोगों को जो है जो गालियां दे रहे हैं, ये कुछ कम है आजाद से सुन। आज भी तेरे को बोल रहा हूँ ये बेवकूफ बनाना छोड़, सुना ये चीजें पट्टों की शेरवानी पहन कर जाकर जो है फोटो सेशन करा रहा, तू जो आज लोग गालियां दे रहे ना, ये लोग तेरे चप्पल से मारने वाले हैं। और खास करके आवाम से कह रहा हूँ कि इसके बहकावे में जो आदमी अपने सिटी को आज 50 साल में डेवलप नहीं कर सका, तो नालों के पर प्रॉपर्टी इलीगल इक्विपमेंट में प्लाटिंग करके बेच दिया, जहाँ जहाँ ये पानी आया है इसके कॉर्पोरेटर इसके लीडर जो है प्लाटिंग करके बेचे हैं। और जो है इन्हें अब तक जो है केसीआर साहब जो है 1300 करोड़ रुपए गवर्नमेंट से तलबला करें, सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी से। बीजेपी गवर्नमेंट इससे पहले हजारों करोड़ माइनॉरिटी के लिए भेजे, आज तक वो रुपया माइनॉरिटी को नहीं मिला, इसमें से 5% भी नहीं मिला। अब 1300 करोड़ किसके लिए बनाए? आपको आवाम के पैसा लेके आप जो है सेक्रेटरी बनाओ बोल के बोले, या वो सिटी डेवलप करो बोल के बोले, या आप इसलिए चीफ मिनिस्टर का पोस्ट लेके आए थे? मैं तमाम आवाम से कहूंगा कि इसका चेहरा अवैसी का सामने आ चुका है। ये जोकर खुद जो है आवाम को 50 साल में लोगों को जो है इन्हें क्या दिया, वो तो बोरी का पानी दिया, और खुद जो है 200 करोड़ के मकान में बैठा हुआ है। इसका भाई छोटा जोकर जो है इसकी शेरवानी कच्ची हुई, इसका पैंट कच्चा हुआ, 200 करोड़ के मकान में बैठा हुआ है। तमाम आवाम से कहूंगा कि इसलिए सामने आ गए। मैं जो बोलता था कि इन्हें रुपया है, इन्हें कुछ भी नहीं है, तू अबर असद तू सुन रहे तेरे इससे पहले मैं कई बार तेरे बोला, आज आवाम की जो तकलीफ है, तेरे लोग जो है कांग्रेस के लोग जो है वहाँ जाकर कुछ बांटना चाह रहे हैं। शबीर अली साहब जो शबीर कांग्रेस का, मैं क्योंकि कोई लीडर को सपोर्ट नहीं कर रहा पार्टी को, मलकपेट में बांटना चाहे तो वहाँ के लोग मारे। इलियास शमसी साहब पुलिस चौक की एक एरिया है, वहाँ पर एनजीओ चलाते हैं, हाफिज कुरान मस्जिद के इमाम साहब थे, कुछ तकसीम करने तो उनके बच्चों को असद ठहरा हुआ है, इसके साथ लोग मारे। सुना रे कमीने, तेरे को शर्म आना चाहिए ऐसे वक्त पे, तू अभी भी सियासत कर रहा कि लोग ये लगना चाहिए कि तू वहाँ के लोग हेल्प कर रहे हैं तो एमआईएम का नाम खराब होगा। तू शर्म से मर जा रहे कमीने, तू समझा रहे बेवकूफ गधे। तो ऐसे वक्त में आवाम के घर में पानी नहीं है पीने को, तो अपनी सियासत चला रहा रहे, बिहार में जाके लोग समझा रहा रहे बेवकूफ गधे। मैं आवाम से कहूंगा कि इसको जहाँ भी इसके लोग आदि इसको चप्पलों से मारे। I think he is using some language which we will not, because we encourage only good. I hope everyone will understand, and fine. This is what. ये है कि आदमी का गुस्सा जो है, जो हालात को देखते हुए लैंग्वेज यूज करना नहीं चाहिए, लेकिन जो गुस्सा होता है, क्योंकि we are all surviving in a civilized. Let us highlight issues. Let us highlight corruption. किस तरह उन्होंने अपने आप को अपने जायदाद बढ़ाई. That I want people to understand, because मेरी दरखास्त ये रहेंगी रजी साहब कि जो है ये क्रिटिसिज्म में भी जो है मेयरात को स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जाए, ताकि जो है अच्छा डेमोक्रेसी में अच्छा डिस्कशन हो। वो लोग कर रहे बोल के हम नहीं करेंगे, राइट, हम वो लोग कर रहे बोल के हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ क्लियर है, आप करना भी चाहिए, क्योंकि वी आर वेरी क्लियर विथ आवर शो, नो पर्सनल एनिमिटी नॉर एनिमोसिटी टुवर्ड्स एनी पार्टी, किसी से जाति दुश्मनी नहीं है ना पार्टी से, केवल हम संविधान के दौर पर, आधार के दौर पर और लॉ के दौर पर हम चलते हैं।
जो कानून है उसी को हम प्रैक्टिस करते हैं। और एक छोटा सा वीडियो प्ले कर लेके देन वी विल गेट इनटू द डिस्कशन। शहर हैदराबाद के अंदर सिर्फ आज अगर 1.5 घंटे की बारिश होती है तो 1.5 घंटे की बारिश के अंदर शहर हैदराबाद आज तालाबों में तब्दील हो गया। अब हम इस पर सवाल करें तो सवालात को हमारे लोग गलत मानते हैं। आप बिहार जाते हैं, बिहार में नीतीश कुमार आरजेडी से सवाल करते हैं, लालू से सवाल करते हैं, कांग्रेस से सवाल करते हैं, सबसे सवाल करते हैं कि 15 साल आपको हुकूमत मिली, आपने क्या किया, 10 साल आपको हुकूमत मिली, आपने क्या किया। वो तकरीरों के लिए कहने वाली बातें बहुत अच्छी है। अब हम आपसे सवाल करते हैं कि हैदराबाद की आवाम ने आपको 50 साल दिया, लेकिन 50 साल के अंदर आपने क्या किया। आज 1.5 घंटे की बारिश होती है तो 1.5 घंटे के अंदर हर एवरेज फैमिली वाले के घर के अंदर बारिश का पानी घुसा हुआ है। ड्रेनेज की प्रॉपर सर्विसेज नहीं है। जीएचएमसी किसके कंट्रोल में है? 86 में आपका मेयर, 2002 में आपका डिप्टी मेयर, आप 2009 में मेयर और डिप्टी मेयर आपका, आज भी स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स आपके, कॉरपोरेटर्स 50 से ज़्यादा हमेशा से आपके। जीएचएमसी अकबरुद्दीन ओवैसी साहब असेंबली में करके कहते हैं हुकूमत मेरी है। तो आपकी हुकूमत आखिर कब? 50 साल में अगर हैदराबाद की आवाम को देखा जाए तो हैदराबाद की आज आवाम 1 घंटे की अगर बारिश होती है तो 1 घंटे की आवाम बारिश के अंदर हैदराबाद की आवाम के घरों का पानी रह जाता, ड्रेनेज का पानी उनके घरों में बैक मारता, घर के राशन रह जाते, घर के कपड़े रह जाते, अलमारियों में आधी अलमारी तक पानी ड्रेनेज का पहुंच जाता बारिश से। फ्लो बैक रिवर्स घरों के अंदर मार के लोगों का हाल इतना बुरा है। आप 50 साल हैदराबाद की आवाम ने आपको वोट देकर, आपको कोशिशें कर मेहनतें कर अपनी उंगलियों को सड़ा कर, आप ही कहते हैं अपनी उंगलियों को सड़ा कर आपको वोट दिया। आपने 50 साल में हमको ड्रेनेज का पानी दिया और आप 50 साल में किराए के मकान से आज आप 10,000 करोड़ के मालिक बनते हैं। आप जिस बंगले में रहते हैं वो बंगला एक पहाड़ पर 200 करोड़ का बंगला, आपके भाई जो बंगले में रहते हैं वो बंगला 100 करोड़ का बंगला। और आज हमारे बाप दादा के घर में, हमारे बाप दादा के दौर में भी पानी आता था और आज भी पानी आता है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है या इसका जिम्मेदार राहुल गांधी है? कौन हो सकता है इसका जिम्मेदार? राहुल गांधी को कभी हैदराबाद की वो आवाम ने वोट नहीं दिया, नरेंद्र मोदी को कभी हैदराबाद की आवाम ने वोट दिया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खानदान अवैसी को दिया। शर्मिंदगी महसूस होती है हैदराबाद की आवाम को, हमारे जैसे लोगों को शर्मिंदगी महसूस होती है कि हम आपको इतना वोट दे के कामयाब करने के बाद भी आज आपका हाल तो बुरा ही है। सो दिस इज़ डिग्निफाइड। सो हम इस तरह की, हम ये क्योंकि कोई व्यक्ति की पूजा नहीं करेंगे, व्यक्ति की तौमीक भी, वे विल नॉट इंसल्ट एनीवन, ओनली इश्यूज़। और यहाँ पर देखिए एक हज़रत ने क्या बोला, फिर बाद में खाली पैसा लूटते, जमीना कब्जा करते, खाते, अच्छे लग्जरी कारों में फिरने आता। हमारे पास एक जाति घर नहीं है, जाति घर दिलाओ बोलो हमारे को, कोई देखने वाला नहीं है। ओटा आते डाल लेते, निकल जाते, 500 रुपए में बिका देते, 500 रुपए दियो ओटा डालो बोलते, डाल देने लेके निकल जाते, कोई पूछने वाला नहीं है हमारे को। तो जी बोलते हैं मेरा मर्डर करा देते, न तो मेरे को अंदर करा देते, मार देते हमारे को। अब उससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? हमारे पैसा नहीं है हमारे पास, किसी से नहीं लड़ सकते, तो गली के रोड़ियों तो उनसे हमारे को परेशान करा के मारने लगा दे। हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद हसन है, चंद्रनगुट्टा हाफिज बाबा नगर डी ब्लॉक में रहता हूँ। मैं एमआईएम पार्टी के लिए मैं कुछ नहीं बोला भाई, एमआईएम पार्टी मेरे लिए बहुत अच्छी है, मैं सालों से उसमें ही काम करता हूँ। हमारे अब्दुल वहाब साहब रात और दिन एक कर देते था, हर टाइम पे काम करते, हम हर टाइम पे साथ दिए, अकबर साहब भी हम हर टाइम पे साथ दिए। मतलब कुछ गलत नहीं बोला, लोगों ने दूसरे वायरल कर दिया। खाजा बिलाल जो होता हमारा वीडियो पूरा उन्हें वायरल करा करते साहब, मेरे को मालूम ही नहीं था। मेरे फैन का मिजाज खराब हो गया था, 2 फैनों का मिजाज, मेरे भाई का मिजाज खराब हो गया। फिर एक बार मैं ये वो पहले से मैं प्ले कर रहा हूँ ताकि लोगों को समझ में आए। खाली पैसा लूटते, जमीना कब्जा करते, खाते, अच्छे लग्जरी कारों में फिरने आता। हमारे पास एक जाति घर नहीं है, जाति घर दिलाओ बोलो हमारे को, कोई देखने वाला नहीं है। ओटा आते डाल लेते, निकल जाते, 500 रुपए में बिका देते, 500 रुपए दियो ओटा डालो बोलते, डाल देने लेके निकल जाते, कोई पूछने वाला नहीं है हमारे को। तो जी बोलते हैं मेरा मर्डर करा देते, न तो मेरे को अंदर करा देते, मार देते हमारे को। ये गौर से सुनिए एक बार, ये गौर से सुनिए आप, क्योंकि बाद का क्यों बदल गया इस वजह से। लेके निकल जाते, कोई पूछने
आने लगा है। आई होप यू हैव लिसन टू दिस नाउ। तो इसके वजह से मैं यहाँ उनका, पर एक बात बोलूं साहब, बोलिए साहब। यहाँ पर एक बात, ये बात बोलना चाह रहा हूँ कि जो है ये गुजरात इज बीइंग रिपीटेड इन हैदराबाद। गुजरात में जो हुआ है, जहाँ पर कत्ल हुए बाद भी, गड़बड़ हुए बाद भी जो रोका गया हो जो एविडेंसेस को, वैसे ही जो हैदराबाद में हमारी वैसी पार्टी कर रही है, दे हैंड इन ग्लव, उन्होंने कर रहे हैं ये। पहले आपको मालूम होगा कि आजाद स्कूल के छोटी बच्ची के रेप केस में भी जो उनके वालिद और दादा जो प्रोटेस्ट करे, नारे लगाए, अकबर असद डाउन डाउन बोले, फिर उन्होंने भी आके ऐसी एक्सट्रैक्ट के लिए माफी चाहिए। तो हैदराबाद में तो जो है बात भी नहीं कर सकते, ऐसी जमहूरियत है हैदराबाद में, जो है गुजरात से बढ़ के है। यहाँ पर गुजरात का लोग तो भी इश्यू उठाते हैं, यहाँ के लोग इश्यू उठाते भी नहीं है। मुश्किल ये है कि यहाँ की आवाज, लोगों की आवाज उठाया भी नहीं जाता। नहीं, बस ये बोलना चाह रहा हम आवाम के साथ में हैं। डरिए मत, किसी का राज्य नहीं है। संविधान हम सबको एक ही तरह की हक दिया है। हम हमारे हक के तहत पर डेवलपमेंट हो या वेलफेयर हो, हम लड़ेंगे और आपके साथ हम हैं, क्योंकि हमारे को कोई जाति दुश्मनी नहीं है किसी से, कोई पार्टी के साथ जाति दुश्मनी भी नहीं है। लेकिन हमारा हक जो संविधान दिया उसके हिसाब से हम जिएंगे, कानून के साथ जिएंगे, और जो आधार है एविडेंस उसके साथ हम पक्का लड़ेंगे जो भी हो। मैं ये बता रहा हूँ, ये ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस बंडलागुड़ा, क्योंकि इसका पहले जनवाड़ा केटीआर फार्म हाउस भी हम बता चुके हैं। नाउ आई विल गेट इन टू डिस्कशन। गफर साहब, नाउ यू टेल मी, आई हैव शोन यू व्हाट इज हैपनिंग देयर। अभी यहाँ पर क्या हो रहा साहब, दोनों मिलके बांट ले रहे हैं। एक तुम पुराना शहर ले लो, मैं नया शहर ले लेता हूँ। तुम पुराना शहर में खा लो, मैं नए शहर में खा लेता हूँ। तुम पुराना शहर का तालाब कब्जा करो, मैं नया शहर का तालाब कब्जा करता हूँ। तुम पुराने शहर के नाले पे घर बनो, मैं नए शहर के नाले पे घर बनता हूँ। ये टाइप में चल रहा। अब आपको उसी पार्टी बोल के बोलेंगे साहब, एक बात तो सही है कि उनका दबदबा जो अभी हमारे कादरी साहब जो बताए, हमारे खान साहब जो बताए, उन लोग वहाँ के मुकामी है, वहाँ का सब कुछ देखे हुए हैं। हम तो गांव से आए हुए हैं, तो उनको ज़्यादा बेहतर मालूम है कि उनकी सियासत क्या कैसी चल रही। उन लोग जो गुजरात का एग्जाम्पल दे रहे, वहाँ से यहाँ पे बदतर तरीके से जुल्म हो रहा, मुसलमान से मुसलमान पे जुल्म हो रहा। उसका राइट टू स्पीच भी जो है सो हक छीन लिए लोग। तो मैं यहाँ एक बात बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो है सो आज के दिन निज़ाम गवर्नमेंट की तारीफ हो रही आज के हर पेपर में। पेपर देखो, टीवी देखो, 1920 में 1902 में निज़ाम ने अच्छा काम किया, निज़ाम ने बेहतर काम किया, निज़ाम ने 450 किलोमीटर का नाला बनाया, निज़ाम गंडीपेट बनाए, निज़ाम उस्मान सागर बनाए, निज़ाम मूसी को 60 फीट की दीवार बनाए। निज़ाम जो है सो फ्लड से, एक फ्लड आ गया तो मोक्ष द ग्रेट इंजीनियर मोक्षागुंडम विश्वेश्वरैया को लेके उन्होंने हैदराबाद का जो है सो पूरा इंतजाम किए फ्लड से रेस्क्यू होने के लिए, बचने के लिए। आज तुम्हारे पास हाई लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज दुनिया का फंड्स है आपके पास, पैसे की कमी नहीं, टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, इंफॉर्मेशन की कमी नहीं, कोई चीज़ की कमी नहीं है। फिर भी आज जो है सो वो टाइम पे कंपेयर कर दो, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर उस टाइम दिए 1920 में, लेकिन 2020 में क्यों नहीं दे सक रहे? ये जो है सो कम्प्लीटली गवर्नमेंट फेल्यूर है। ये हर काम में इन लोग क्या कर रहे हैं, इनका जो बेनिफिट होता है वही प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी दे रहे। अभी आपको एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, JNTU वाले 2018 में एक फ्लड से कैसा हैंडल करना बोल के एक रिपोर्ट दिया उन लोग। उनके रिपोर्ट में जस्ट 2800 करोड़ में जो है सो उन लोग सजेशन दिए, एक 450 किलोमीटर का जो है सो एक नया नाला बना बोल के बोले, ड्रेन, और जो है सो 2,70,000 के रेन हार्वेस्टिंग पिट्स बना बोल के बोले, एक 400 वाटर मैनेजमेंट के क्या बोलते छोटे लेक्स पांड्स बना बोले, और रिवर्स कैमर रोड्स बना बोले, पैरेलल नाले बना बोले। उसका अमाउंट कितना है? 2,800 करोड़।
फिर आपको 2014-15 में जब टीआरएस गवर्नमेंट आई 67,000 प्लस करोड़ का हैदराबाद को डेवलप करके वर्ल्ड क्लास कॉस्मोपॉलिटन सिटी बनाते बोल के बोले 2,800 कहाँ, ये 67,000 करोड़ कहाँ है। अभी इन लोग एसडीआरपी के अंदर जो है सो 6,000 करोड़ खर्च करके वहाँ पे फ्लाईओवर बना लिए, अंडरपास बना लिए, सब कर लिए। ड्रेन का मैनेजमेंट ही नहीं है, वाटर स्टॉर्म का मैनेजमेंट नहीं है। अभी आपको मूसी को जो है सो रेडियल नाला बनाने से कौन रोका भाई? आप रोके, मैं रोका, कौन रोका? पब्लिक रोका। 2,000 करोड़ 800 करोड़ रखे इन लोग बनाने के काम को। इन लोग जो है सो 2018 में 6,000 करोड़ खर्च किया खाली पीली कामों पे। ये क्या है? पूरा जो है सो उनके जो भी फॉलोअर्स, उनके फ्रेंड्स है, उनके नियर एंड डियर है, उन लोगों को जो है सो ऐसे प्रोजेक्टों के जरिए पहले पैसा उनके गोद में डाल रहे हैं बस। ये आम आदमी के लिए क्या इनके फिक्रमंद नहीं है इन लोग। आम आदमी क्या है, रहना है, पानी आया, घर डूब गया, सामान डूब गया, 4 दिन उसके लिए एक केसीआर किट बोल के देते थे, और क्या की दे देते, वो 4 दिन खा लेता, रो लेता, पी लेता, फिर सो जाता, खाली काम कर लेते रहता। ये हाल चल रहा। अभी आपको हमारे कादरी साहब बता रहे हैं वहाँ पे लोगों को आवाज उठाए सुन के आज उसकी तकलीफ जो है सब फलाने पॉलिटिकल पार्टी की वजह से हुई बोले, दूसरे दिन आके कोई पार्टी का माफी मांग रहा बोलते, वहाँ पे कैसे हालात। तो यही हालात हर जगह आवाम की आवाज दबा दी जा रही। उसका स्टाइल ऑफ फंक्शन अलग है। तो अभी इन लोग आवाज दबा नहीं सकते। हम लोग जरूर आवाज उठाएंगे और आप जैसे जर्नलिस्ट जरूर आप आवाम के साथ दे रहे। हम भी जो है सो आवाम के साथ रह के आवाज उठाएंगे। इसका एक दिन ना एक दिन अभी आने वाले इलेक्शन में भी आवाम उनको जो है सो मुंह तोड़ जवाब देगी। आवाम जो है सो उनके साथ रूबेरू मुखातिब होने के लिए कमजोर होगी, लेकिन वोट से उसका जवाब देने के लिए हमेशा वो आगे रहेगी। इसमें हम उम्मीद रखना चाहिए। जरूर इन लोगों का कल 2020 के एंड में या 21 में जीएचएमसी में या एमएलसी में इनका जरूर इनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा आवाम से। वंडरफुल। खान साहब आ गए, आप ज्वाइन हो गए? इमरान खान साहब, बात करिए। खान साहब, मैं कादरी साहब के पास जाने के पहले आपसे बात करूंगा। खान साहब बात करिए। कादरी साहब आप बोलिए। देखिए साहब, मैं तीन बातें बोलना चाह रहा हूँ। Right. एक तो ये आर वी एज अ स्टेट, एज अ नेशन गोइंग टू हियर करेक्ट आवरसेल्व्स। 1820 का फ्लड आया था, 1820 में फ्लड आया था, 1908 में फ्लड आया था, और अब 90 तो मोनार्की के सिस्टम में तो लोग इतना स्टेप्स लिए सिटी को बचाए। और 1970 में आया, मिनी फ्लड्स बोलते हैं उसको, 1970 में, और फिर अब आया। तो आर वी गोइंग टू लर्न लेसन्स और आर वी जस्ट गोइंग टू फॉरगेट अबाउट इट? ये है कादरी साहब, ये आप इस बार का जो फ्लड आया उसके जिम्मेदार जो सो ये मजलिस के लोग हैं, AIMIM इसकी जिम्मेदार है। अगर जो फ्लड आया वो तो देखिए नेशनल कैलेमिटीज थे उसका है, लेकिन आज सिर्फ क्योंकि बारिश हुई, फ्लड्स का तो कोई वो नहीं था। बारिश हुई, बारिश से मतलब इतना जो तालाबों को कब्जा कर लिया गया, जिस तरीके से डेवलपमेंट नहीं हुआ ओल्ड सिटी में, यहाँ के नालियों का जो काम वैसे रह गया, वो उसकी वजह है जो आज जो तबाही मची हैदराबाद में। असल जिम्मेदार तो जो सो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है साहब। मैं आपकी बात से यकीनन इत्तेफाक करता हूँ कि ये जो है असल ये लोग ही हैं जो भी सियासतदान हैं, गवर्नमेंट की मशीनरी का साथ लेके, कलेक्टर है, MRO है, और POB प्रोहिबिशनरी ऑर्डर बुक रहती है कलेक्टर साहब के पास। उसमें जो है प्रोहिबिशन रहता है, ये एरिया में नहीं बनाना। कैसा बना गया? आप जो फोटो दे रहे हैं, बतला रहे हैं वीडियो, ये सब डेवलपमेंट कैसा हुआ? अरे वो सब छोड़िए, जो कानून बनाते हैं, LOP हमारे अकबर वजी साहब का एक फार्म हाउस है पानी के पास, हमारे ग्रीन ट्रिब्यूनल में जो है हमारे ताल्लुक से है। तो ये चीजें ऐसे हैं कि जो है आवाम को अवेयरनेस आना चाहिए। आवाम खामोश बैठी, घर लूट गया, आपके पास मौता हुई, हाँ हमको गम है, तकलीफ है। इंसानियत को जो है आप दान कर दे रहे हैं, सिर्फ हर चीज पैसा,
ओल्ड सिटी में क्या है, ये जो वीडियोस बताए हैं, पहले जो क्लेम कर रहे हैं, फिर बाद में जो है माफी चाह रहे हैं, तो उन लोगों को यू हैव स्नैच्ड देम, यू हैव डिप्राइव्ड देम ऑफ द राइट टू एक्सप्रेस दैट डिसेंट आल्सो। अरे मैं बीमार हूं, मैं मेरे बाबा का इंतकाल हो गया, मैं रो भी नहीं सकता। अरे क्या जुल्म है साहब, ये गुजरात से बढ़ गया है, इसको उठाना चाहिए। और डीजीपी साहब से मैं ख्वाहिश करूंगा कि जो है पुलिस में जो है आपके डेलीगेशन के साथ हमारी पार्टी के जो है आदमी के साथ जो है, जो मारे पीटे दवाखाने में शरीक हुआ आसिफ इकबाल साहब, ऑल इंडिया मजलिस इनकलाबी मिल्लत का, और हमारे और एक इलियास शमसी साहब हैं, उनको मारा गया, उनका घर लूटा गया। क्या हम आवाज भी नहीं उठा सकते आपकी हुक्मरानी में? ऐसे कैसे नहीं साहब, किसका बाप का राज है क्या? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? आप उठाइए, आवाज उठाइए। यहाँ से हम 4 लोग उठा रहे हैं, किसका बाप का राज है? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? उठाइए आप, उठाइए साहब। नहीं क्या साहब, तो पुलिस का जो है सो मोटो कैन दे टेक एक्शन, They should. व्हाई शुड दे वेट फॉर कंप्लेनेंट टू फाइल अ कंप्लेंट? अरे आपके सामने जो है औरतों को लाके फेंक ओवर dump the ladies on the bodies of these people, delegation people. What more you want? अरे हमारे आज तक से केस बुक नहीं हुआ। और मैं ख्वाहिश करूंगा खान साहब, आपकी पार्टी भी जो है 125 साल 130 साल पुरानी पार्टी है, शुड फॉलो अप द केस, कंप्लेंट देना चाहिए। तो उत्तम कुमार आपको खादरी साहब, कहीं ना कहीं जो सो आज जो हालात ओल्ड सिटी में पैदा हुए हैं, उसकी कहीं ना कहीं जिसको कांग्रेस पार्टी भी थोड़ी सी जिम्मेदारी हमको भी लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग ही इनको जो सो पाल पोस के बड़ा करे। बार बार हमारे शबीर अली साहब बोलते कि हम अस्तिन में सांप पाले थे, उस तरीके से जो सो आज जो सो टीआरएस पार्टी को समझना चाहिए, और जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको जो सो समझना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो इख्तियार में जो रहते उनके पैरों में गिर के, उनके साथ बैठ के इस तरीके से मतलब अपनी हुकूमत चलाते हैं, और उसके बाद में इनकी हुकूमत के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाते हैं तो पुलिस को जो सो और गवर्नमेंट मशीनरीज को लेकर इतना अफसोस है कि साहब जो बयान, जो तकलीफ दे बयान थे, उन बयानों को पलटा देना बोले तो आप सोचिए कि कितना जुल्म जो सो बढ़ गया हैदराबाद में। नहीं छोड़िए साहब, इसीलिए आवाम को समझाइए आप, आवाम को आप मैं ये वो लोग समझ रहे हैं कि जो लोग अच्छा करे दुनिया जो है उनको नहीं साहब। कादरी साहब एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, कादरी साहब एक लेवल पर जो है, कादरी साहब एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। 3 पार्टियां आज शो में है, ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत, आम आदमी पार्टी जो रूलिंग में है, जो सदाबहार कही रही है, और कांग्रेस। आप लोग अपने लोगों को भरोसा दीजिए, और हम मेरे शो इस तरह करेंगे, ये जो भी बदतमीज़ी कर रही हैं लोगों से, डरा के धमका के कर रहे, उनकी पोल खोलेंगे हम करप्शन का, जो भी जिस तरह कमाया क्या है। आज आधार के साथ हम बता चुके हैं, आज तालाबों को किस तरह स्कूल ऑफ एक्सेलेंस, और वहाँ पर ओवैसी हॉस्पिटल भी, ये सब एक्सपोज करेंगे, ऐसा एक्सपोज करेंगे ताकि इवन कोर्ट्स भी मजबूर हो जाएंगे उनके ऊपर एक्शन लेंगे। तो ऐसा हम लोगों को ये करेंगे। बोलिए। ओल्ड सिटी में रूल ऑफ लॉ है। बालापुर का जो है टैंक बेड का ब्रिज जो किए हैं गवर्नमेंट ने किए है, वहाँ के लोग काउंसिलर किया है, हमारी जो इत्तलात है काउंसिलर किया है, उससे जो है पूरा बाबा नगर बह गया, पूरे नजीब नगर बह गया। तो गवर्नमेंट, उसके बाद भी गवर्नमेंट एक्शन ली नहीं ली। तो ये जो सेंट्रल कमीशन को रिक्वेस्ट करना कि खाली आप पैसे देने से नहीं होता, यू शुड डिप देम इन द बड। जो बीमारी है उसका भी इलाज करना है ना, खाली आप पैसे देकर चले गए तो इट्स अ नेशनल वेस्ट, यू आर वेस्टिंग नेशनल। नहीं वो पैसे भी हमारे, वो पैसे भी हमारे हैं, हमारे टैक्सेस के जरिए आए से हो, कोई किसी के जॉब से नहीं दे रहे हो, लोग लाके नहीं दे रहे, किसी के जॉब से नहीं दे रहे। जो टैक्स पे करते हैं आज आप पैसे दे रहे, इसीलिए आज पैसे दे रहे, इसीलिए आज आप कबूल कर रहे कि आपने गलती किया, इसीलिए आप पैसे दे रहे। आज इत्तेहाद के दौर पर अगर पहले ही बोलिए। और देखिए अब असद साहब, अकबर साहब हर जगह, जैसे मेरे भाई साहब बोले खान साहब, कि जो है दूसरे स्टेट्स में जाते हैं इलेक्शन के टाइम पे पैसे देते हैं ये। और आप ये बतलाता चलूं कि जो है अकबर साहब को तकरीर है, मैं आपके पास भेजा भी हूँ, कि 4000 करोड़ रुपए हमारे जो पास है, 4000 करोड़ के एसेट्स और पैसे है। तो जो है 10,000 करोड़ का पता साहब, एक जगह 4000 करोड़ बोले, एक जगह 10,000 करोड़ का असासा है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बोले।
आवाम का वो असासा है। वो शीशों का कमाल दिखता था, वो शीशों का कमाल दिखता कि शीशे में ठहर के बोलते हैं। तो जो है कमाल ये है कि जो है जस्टिस सत्तार दारुसलाम का कोर्ट केस है, उसमें ये जजमेंट है कि 33% दारुसलाम की इनकम जो है मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग के लिए होना है, 33% पार्टी के लिए होना है, 33% मिल्लत के यानी मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए खर्च करना है। तो उनके हिसाब से 4000 करोड़ जो है उनका एसेट है, बोले तो 33% 1320 करोड़ रुपए में से कितने दिए अभी तक? वेबसाइट पे डालिए ना आप, हम मांग कीजिए, आप हम सब मिलके मांग करेंगे कि ये क्या है भाई, हमारा पैसा हमारे को दो ना, हमारा ही पैसा है ना, बिल्कुल साहब। जजमेंट है ना, करिए सर, मांग जजमेंट के करिए, लिहाज से खर्च मांग कीजिए। करिए, मांग करिए, यहाँ से गलती मांग करिए। हम आपके जरिए से गवर्नमेंट से भी बोल रहे हैं कि एक्शन लीजिए। ये कि ये 1320 करोड़ रुपए खर्च करना है। 1320 करोड़ रुपए अगर खर्च कर, क्या दे रहे, 10,000 रुपए जो दे रही वो हर एक के हाथ में, गवर्नमेंट चीज है, और गवर्नमेंट के आप जो है हर एमएलए के हाथ से दिला रही। तो आप ओल्ड सिटी में गरीबों को ये इंप्रेशन दे रही कि गवर्नमेंट मैं दे रहा हूँ, बल्कि इन्होंने दे रही, गवर्नमेंट का फंड से, रिलीफ फंड से दे रही। तो या आप जो है जो 4000 करोड़ रुपए का जो ऐलान किए उसका 33% 1320 करोड़ रुपए होता, उसमें से कितने दिए बताइए। पब्लिक हम ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत आपसे पूछना चाह रही है आपके जरिए से कि आप कितना खर्च किए। कुछ भी नहीं, खाली सी बातों से काम चलता क्या? रेड्डी साहब, हम आपके माध्यम से ये मांग कर रहे हैं कि अकबर ओवैसी साहब ने पब्लिकली, मैं आपको वीडियो भेजता हूं उसका, कि 4000 करोड़ हमारे पास हैं मिल्लत के, और जस्टिस सत्तार जजमेंट के लिहाज से दारुसलाम के 33% खर्च करना है मुस्लिम्स के वेलफेयर के लिए। तो 33% कम्स अमाउंट्स टू 1320 करोड़। अरे आप अच्छा सिटी डेवलप कर सकते हैं ना जी, पूरे गरीबों को, गरीबा वोट जो दे रहे हैं जो है आपके हमेशा के लिए वोट देने वाले हो जाते हैं ना। हम जो है पार्टी एंगल से नहीं बात कर रहे हैं, इट्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। मैं जैसा बोल रहा, अल खल्क़ु कुल्लुहुम अयालुल्लाह, फैमिली ऑफ द गॉड है वो। अरे आप गरीबों की मदद करो ना, क्यों नहीं करते? खाली सी बात तकरीर करेंगे, तकरीरों से कुछ होने वाला नहीं है। 60 साल राइट, आपके राइट साहब। अगर मुसलमान बादशाह हैदराबाद का हो गया तो इनको सबसे पहले लात मार के निकाल देता। इसीलिए ये लोग मुसलमानों को, जो हैदराबाद के जो मुसलमान है, उनको सिर्फ अपने छोटे छोटे बिजनेसों में, उनके परेशान हाल जिंदगी में परेशान हाली में रखकर, जब भी इलेक्शन आता उस दिन निकल कर, आप अभी तो डॉक्टर साहब थोड़े वीडियो तो बताए, ऐसे हजारों वीडियो थे जहां पर बोले कि सिर्फ एमएलए एमपी कारपोरेटर आते इलेक्शन का आ रहे हैं, हाथ बता के चले जा रहे हैं, इलेक्शनों के टाइम पे आते हैं, 500 रुपए देके हमको चले आते हैं। तो ये लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं इनके जो परेशान हाल जो लोग हैं, उनकी परेशानियों को जो है कि अगर हल कर देंगे तो ये आप जो सवाल आज कर रहे हैं, ये सवाल हर एक हैदराबाद का मुसलमान करेगा कि भाई हमारा हिस्सा जो हमको जो आना था वो कहाँ से आएगा। तो इसीलिए ये लोग उनको परेशानियों में डाल के छोड़ देंगे। राइट, गफर साहब, ये परेशानी उनके लिए एक्सप्लॉइटर्स के लिए तो नेमत है। उन्हें फिर 500 रुपए देंगे। अब आपके पास ना, हमारी टीआरएस गवर्नमेंट से भी मुतालिबा है, आप डेवलप करते बोले, एम्प्लॉयमेंट देते बोले, डेवलपमेंट क्या हुआ ओल्ड सिटी में आप ही बताइए। केटी रामाराव साहब, इस्तांबुल बनाता हूँ, डेलस बनाता हूँ, कहाँ है हम केटी रामाराव साहब, हम और चंद्रशेखर राव साहब का यकीनन शुक्रिया अदा करेंगे कि एक इलेक्शन मैनिफेस्टो का एक ही जो है मुद्दे को जो है पूरा तकमील किया। वी आर थैंकफुल टू यू। आप बोले थे पानी हर घर में लाऊंगा, हर घर में पानी पहुंचा दिए, हर घर में पानी। हम शुक्रिया अदा करते, एक ही जो है आप जो है इम्प्लीमेंट करें। चंद्रशेखर राव साहब, हम खुश हैं आपसे। वो नाला का पानी हो, नाले का पानी हो, या वो नाले का पानी हो, ड्रेनेज का पानी हो, उसमें कोरोना है या कल के दिन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजार्डर्स आएंगे या डेंगू आएंगे, लेकिन पानी तो पहुंचा दिए। पानी पहुंचाऊंगा, पहले पानी पहुंचा दिए, पानी पहुंचा दिए। पानी पहुंचाना नहीं, घर का सामान भी पानी में चले गया, इतना और क्या होना आपको। इतना पानी आया, इतना पानी आया, घर तालाब हो गया। इतना बड़ा डिजास्टर होने के बाद भी घर के बाहर नहीं निकल गया। ये भी एक जो हिस्ट्री बना दिए कि आपको जो अवाम आपको इलेक्ट करके जो लेके कि वो अवाम बेबस है, लाचार है, परेशान है, तो उनके
उनके लिए 2 घंटे 2 मिनट का वक्त इनके पास नहीं है। और इसका जवाब जो सो शायद देना भी चाहिए, देंगे नहीं। हम तो चाह रहे हैं कि आवाम इस बात को समझे कि हम किस तरह से के लोगों को हुक्मरानी करने दे रहे हैं और इनको जो सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं जो सो टीआरएस गवर्नमेंट बराबर की जिम्मेदार है जो हैदराबाद के अंदर जो हालात हुए, क्योंकि इन्हों पूरा हैदराबाद को जो सो ये जो चोरा है, लुटेरे हैं, उनके हाल पे छोड़ दिए। आज वो लुटेरों के हाल पे छोड़ देने की वजह से आज ये हालात पेश आए। तो कहीं ना कहीं टीआरएस गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है। तो ये सिर्फ हैदराबाद के लोग नहीं बल्कि सारे तेलंगाना के जो लोग हैं उनको भी समझना चाहिए कि किस पार्टी को हम जो सो सपोर्ट कर रहे हैं और ये पार्टी किसको सपोर्ट कर रही है। वंडरफुल। गफर गारू, साहब आप खान साहब आप तो बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं टीआरएस जिम्मेदार है। हमारा तो ये ऐलान है, हम तो ये हमारा स्टैंड है कि ओल्ड सिटी हैव बीन गिवन इन जागीर टू ओवैसीज। ओल्ड सिटी ऑफ हैदराबाद को ये जागीर दे दी गई, वहाँ जो चाहे कर लो। आप देख रहे हैं ना, ये पूरे आप जो वीडियो क्लिप बता रहे हैं, पुलिस रहते हुए वो फिर आके जो बयान दिए बाद फिर बयान बदल दे रही। तो नहीं इसे ये शो से ये शो से हम नहीं ये शो नहीं सर, आपको जो है आपको क्या छुपाना है, आप जो क्या काम कर रहे हैं देखने दो ना लोगों को। फिर सेंट्रल टीम को कैसा आने दे रहे हैं, पैसे देते बोल के उसमें आपको स्लाइस का आपका फायदा होता बोल के। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चेयरमैन अकबरुद्दीन है ना। और मैं आपके खान साहब, मैं आपके जरिए से कांग्रेस पार्टी से भी ख्वाहिश करूंगा कि उनका नरम रवैया ने तो ये लेवल पे ला दिया उनके अंदर। और हमारा कोई भी जो है हर गाड़ी में बैठने वाला जिसका मैनिफेस्टो नहीं हो, 60 साल से इलेक्शन मैनिफेस्टो नहीं है, उन किसी का नहीं हो सकता। हर चलती गाड़ी में बैठने का आदी रहता हूँ। उन जो देखिए कांग्रेस, टीडीपी, टीआरएस, आप जो भी पार्टी आओ उनके साथ रहेंगे उन्होंने। इसलिए उन्होंने कारोबार कर ही सकते उस वक्त तक जब तक के स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस का साथ हो। तो ये बात बराबर है, क्योंकि 20 साल का जो वो रहा ना, उसको जो सो कहीं ना कहीं सुधारने के लिए वक्त लगेगा। इंशाल्लाह हमको, हमारी कांग्रेस पार्टी से हमारे जो लोग हैं उनको हमको इस बात का यकीन है कि आने वाले वक्त में इनके जो नाकामियां हैं और इनके जो यानी कि गुंडागर्दी है, इसके खिलाफ जरूर कांग्रेस पार्टी, अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस के कई लोग मैदान में हैं और सीनियर लीडर्स भी आगे भी आने वाले जो सो वक्त में भी तो कांग्रेस की जो सीनियर जो लीडर्स हैं वो भी इस बात के ऊपर बैठ के गौर करेंगे किस किस्म से जो गलती हुई उस गलती को फिर सुधारा कैसा जाए और इनके जो कारकर्दगी जो रही उसको जो आवाम के सामने कैसा ला जाए। इंशाल्लाह जरूर जो हम कोशिश करेंगे। गफर साहब, गफर साहब समझना 2019 में 2016 में जो है बल्दिया का इलेक्शन और जीएचएमसी का इलेक्शन हुआ, उत्तम कुमार रेड्डी साहब को और उनको जो है उनका इस्तेमाल किया गया, पुराने शहर में मारम पीटी की गई। आज तक क्या हुआ? परसों का जो है आप लोगों के साथ क्या आप लोग ऐसा नरम रवैया आप लोगों का, आपके दिल में भी ये है कि फिर कल कोई डेवलपमेंट हुआ तो हाथ मिलाएंगे? तो वो तो हम किसी भी वक्त कानून को हाथ में लेना चाहिए, क्योंकि हमारी जो पार्टी है उसका यही स्टैंड रहा कि देखिए आज सारा हिंदुस्तान बल्कि सारी दुनिया टोकरी एक बात के ऊपर के लाओ सालों को औरतों को इनके आने के ऊपर डालो, जो बात बोले उसका जवाब। और अगर हम चाहते तो उस वक्त भी जवाब दे सकते थे, लेकिन हम कानून को हमारे हाथ में ले लेना चाह रहे हैं, यही एक वजह। लेकिन जिस दिन अगर कांग्रेस के मुसलमान नौजवान और मुसलमान कांग्रेस के अगर ये सोचे कि हम भी अगर कानून को हाथ में लेंगे तो इंशाल्लाह वो वक्त अगर जब भी आएगा तो हैदराबाद से ये जो पार्टी है ना, ये पार्टी के लीडरों का इंशाल्लाह सफाया होगा। मेरे भाई एक चीज है कि ये उनको जो है आप ठहरिए ना बात, आप खुदारा अब हम ये खत्म ये नहीं बोलते कि आप इलीगल काम करो, आप मारम पीटी करो, आप दरखास्त दे सकते, केस को तो प्रोसीड कर सकते। आप आज तक नहीं है, आप लोग जो है मार खा के दूसरों को भी कमजोर कर दे रहे। उत्तम कुमार रेड्डी साहब 26 साहब की गाड़ी पे हमला होता है, उन्हें खामोश कैसा रहते? चले राइट गफर साहब, नहीं लेट मी एंड नाउ क्योंकि हम मेरा डिस्चार्ज भी हो जा रहा। राइट इट्स ओके, इट्स योर पॉइंट। के इलेक्शंस में हुआ, वो बल्दिया के इलेक्शंस में मार खाए, ये बल्दिया का इलेक्शन आ रहा, अनाउंस हो रहा, आज तक कुछ भी नहीं करे आप। फिर हमारे को दहशत सिटीजन को कमजोर कर रही कि वो पार्टी के सामने आप कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं योर पॉइंट इज टेकन कादरी साहब। कांग्रेस अपना रवैया बदलना चाहिए। जब उनके लीडर्स के ऊपर ही अगर हमला हुआ और वो हमले के बदले में केस अगर आगे नहीं बढ़ा तो हम एक डेफिनेटली एक एग्जाम्पल दे रहे हैं लोगों को कि हम इधर कमज़ोर है या नहीं तो कल हम उनके साथ में रहेंगे।
तो एटलीस्ट इसके ऊपर से उभर के आना चाहिए। खान साहब जैसे अच्छे लीडर्स कांग्रेस में भी है। मैं समझता हूँ एटलीस्ट आज जो तबाही मच चुकी है ओल्ड सिटी में या हैदराबाद, पूरे हैदराबाद ही नहीं, वरंगल, करीमनगर हम पूरे बता चुके हैं। हैदराबाद में 2005 से क्या हुआ और ये सरकार आने के बाद अब तक 4 फ्लड्स ऐसे देखे हैं हम। क्या करे, कुछ नहीं करे। और अपोजिशन पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमन फ्रेंडली पार्टी अपोजिशन बनने से आज हमारे को लोगों को बददुआ हुआ या क्या। और साथ में कांग्रेस भी एक अच्छा सा रिप्रेजेंटेटिव रोल लेना चाहिए। जब लोगों के, उनके लीडर्स के ऊपर हमला होता है, अगर ऐसे लोगों को सज़ा नहीं मिला तो आम आदमी को हम क्या जवाब देंगे, ये भी एक सोचना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। Indirectly you are encouraging them. Indirectly you are Right. encouraging them to Right. do more. గఫర్ సాబ్, గఫర్ గారు, ఎస్ గఫర్ గారు అసెంబ్లీ ఎదురుగా 1 సెకండ్ సార్, ఒకటి గఫర్ గారు అసెంబ్లీ ఎదురుగా నే లైట్ చూడు దీజిए। గఫర్ గారు అసెంబ్లీ ఎదురుగా తెలంగాణ నాగులు ఆత్మహత్య చేసుకుంటాడు, బేబీ సుమేధ కొట్టుకుపోతుంది, దాని తర్వాత ఎంతోమంది కొట్టుకుపోయినరు। ఇప్పుడు కూడా ఈ వరదలో ఒక్కొక్క కుటుంబంలో 8 మంది కొట్టుకుపోతే మియా బీవీ రాజీ అన్నట్లు రూలింగ్ టీఆర్ఎస్ పార్టీ మాట్లాడదు। అపోజిషన్ పార్టీ వచ్చి ఇప్పుడు జిహెచ్ఎంసీ ఎన్నికలు వాళ్ళ బేస్ కదులుతుందని ఇది కొత్త నాటకం, 10,000 दे रहे हम वो दे रहे। एक्चुअली सर्वे करे क्या, किस किस के घर में कितना नुकसान हुआ, एक्चुअली कितने लोग मर गए, कितना नुकसान हुआ, कुछ सर्वे नहीं करे। खाली अनदर फोटोशॉप ऑप्स, 10,000, 1 लाख, किसका बाप का राज है। आप देखिए इंटरमीडिएट बच्चे मर गए, आज तक कंपेंसेशन नहीं मिला। डेंगू के जो ये हुआ हादसा आज तक नहीं मिला। कोरोना के कितने लोग मर गए, आज तक आरोग्यश्री में नहीं लाए। कोरोना तरवाता उपाधि बहन उनके नौकरियां चले गए, ख़त्म हो गए। और यही अजद बोल रहे कि हमारे इतने साल से हमारे 10,000 के बहुत अंदर ही है पूरे। ओवैसी इज ऑन रिकॉर्ड एंड वी चैलेंज हिम इफ 10 दे पीपल कुड नॉट अर्न 10,000 फॉर लास्ट 50 years they have been representing corporators, MLAs है और he is an MP. Why per capita income of old city has not increased and who is held responsible? Is it not because of TRS and AIMIM colluding and just because of one religion politics, one caste politics, and one wants to make his son as CM? The entire Telangana is compromised. Gafar साहब, मैं लास्ट में आता हूँ खान साहब आपके पास। थोड़ा बाकी के लोग थोड़ा वो म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लिए तो आपका आवाज़ नहीं आता। वी कैन लिसन टू गफर। साउंड आ रहा। आप सब लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज़। या చెప్పండి గఫర్ గారు। సార్ ఇది మీరు చెప్పినట్టుగా ఈ ఫ్రెండ్లీ ప్రతిపక్షం ఉండడం వల్ల మియా బీవీ రాజీతో క్యా కరేగా కాజీ అన్నట్టుగా ప్రజల పరిస్థితి అయిపోయింది। అది వీళ్ళు ప్రజల ఒక దురదృష్టం। అది पब्लिक का जो है सो बदकिस्मती है कि एक पार्टी जो है सो अपोजिशन है, एक पार्टी रूलिंग है। ये कम्प्लीटली ये रूलिंग और अपोजिशन पार्टी का फेल्यूर है। हिस्ट्री में बहुत बड़ा फेल्यूर है ये इसको जो है सो किसी भी हालत में माफ नहीं करना चाहिए। और ये जो पॉलिटिक्स हो रहे हैं बोलते से उसके ऊपर हम इसके ऊपर इसलिए जो है सो अब तमाम लोग हमारे कादरी साहब की जमात आ गई उसको चैलेंज करने के लिए। अभी कांग्रेस से कुछ नए लोग वो उसका कड़वा एक्सपीरियंस से उनके बारे में बता रहे हैं, उन लोग ऐसा कर रहे हैं। इन लोग का क्या है, एक पैटर्न है, 4 दिन कांग्रेस, 4 दिन TRS, 4 दिन TDP। अभी बीजेपी को भी क्या इनडायरेक्ट चल रहा मामला। अभी इन लोगों को हर पार्टी से कहीं ना कहीं तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट एसोसिएट बन के काम चला रहे हैं। अभी ये जो इसको रोकना है तो पब्लिक के अंदर चेंज आना चाहिए, पब्लिक के अंदर शोर आना चाहिए। पब्लिक को क्या राइट है क्या रॉन्ग है उन लोग वोट से जवाब दे सकते हैं। रोड पे आके बात करने की जरूरत नहीं है। पब्लिक को वोट से जवाब दे सकते हैं। जो बंदा सही बंदा उनके लिए जो उनका डेवलपमेंट के लिए जो मैनिफेस्टो लेके आता उन लोग उसके ऊपर वोट देना चाहिए। उनको एजुकेशन चाहिए, उनको हेल्थ बेनिफिट चाहिए, उनको लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उनको घर चाहिए, उनके बच्चों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए। ये तमाम चीज़ जो है उसको गवर्नमेंट ही दे सकती। अभी हमारे कादरी साहब बोले वो ये हमारे क्या बोलते दारुसलाम में कुछ 33% कुछ अमाउंट जो है सो स्पेंड करना चाहिए पब्लिक के लिए, अप्रॉक्सीमेटली 1300 करोड़। मैं उसका अमाउंट का एक आपको सजेशन बता रहा हूँ। मैं अभी हमारा डबल बेडरूम स्कीम है, 1 लाख घर बनाना बोल के, उसके अंदर गवर्नमेंट जो है सो मुस्लिम को जो है सो 7%
कोटा देना बोल के एक जीवो इश्यू करा है। 7% 1 लाख में 7% 7,000 घरा होते। अगर आप 8,000 करोड़ के अंदर 13 करोड़ अमाउंट अगर आप स्पॉन्सर करें, 15,000 करोड़ घर मिलते हैं मुसलमानों को, नहीं गरीबों नहीं को। वही नहीं, यहाँ पर गफर आप साहब, दारुसलाम के उस पे 15,000 घरा दिला सकते हैं भाई। गफर साहब, आप विदाउट गवर्नमेंट में रहकर। गफर साहब यहाँ पर एक तो भी आप क्या है? और एक ऐड कर रहा हूँ। नहीं नहीं चाहते साहब, नहीं नहीं, कादिर साहब एक सेकंड, आप कादिर साहब आपके पास आता हूँ, फिर बात करेंगे। नहीं नहीं गफर साहब, పబ్లిక్ ఏ సచ్చాయి గఫర్ సాబ్ మాట్లాడుతున్నారు. గఫర్ గారు, నేను ఒక మాట ఏం చెప్తున్నానంటే, గఫర్ గారు होना चाहिए. गफर गार ये इंको माटा కూడా మీరు మంచి మాట చెప్పిండ్రు. ఎవరైతే ये नालों के ऊपर जो भी घर बन चुके हैं आज, नालों को अब्स्ट्रैक्ट कर रहे, ये सब लोगों को, वह मुसलमान हो, उनको ये डबल बेडरूम जो दारुसलाम का पैसा है 1300 करोड़, उसके अंदर वो डबल बेडरूम बना के दिए तो वो तालाब, ये तालाब नहीं होता। बोलिए गफर साहब, बोलिए, गुड सजेशन। तो वही बोल रहा हूँ साहब, मैं अभी क्या है बोल दो, उन्होंने एक गवर्नमेंट में बाहर, गवर्नमेंट के बाहर रहकर उनके पास उतना अमाउंट है, 1-2 लाख करोड़ बजट रहे, सो टीआरएस गवर्नमेंट 7,000 घर दे रही मुस्लिम को, 2 लाख करोड़ बजट रहे सो गवर्नमेंट, और इनका कोई बजट नहीं है, इनका इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन का बजट 1300 करोड़ से 15,000 कर दे सकते। तो मुसलमानों को वो तालाबों में, नालों में, उनको बसा के उनके जानो माल से खिलवाड़ हो रहा, उनके जानो माल से खिलवाड़ हो रहा, उनके जिंदगियां बर्बाद कर रहे। जो गरीब आवाम है गाँवों में, छोटे छोटे गाँवों में जो है सो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल के, और दूसरे बॉर्डर स्टेट्स है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, ये बीदर, औरंगाबाद, ये इधर के तरफ से लोग जो है सो यहाँ नागपुर, आदिलाबाद के तरफ, नागपुर से तेलंगाना आ रहे हैं मुसलमान लोग, उन लोग जाके हैदराबाद के गोल आके बस रहे, गंद नालियों के पास, तालाबों के पास बसा रहे इन लोगों को। लोग नोटरी में पैसे बन के जो है सो लिख के दे रहे हैं उन लोगों को, और पानी आ गया तो फिर तालाब का पानी जाएगा किधर? भर जाएगा, घर में आ जाएगा, जानो माल का नुकसान हो रहा। आपके पास पैसे रखकर आप नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या है, इनकी बहुत बड़ी गलती है। पब्लिक जो है सो इस चीज़ को समझना चाहिए। और यहाँ पे हम आम आदमी पार्टी डिमांड करती है, ये जो है सो तेलंगाना गवर्नमेंट से, तो हर तेलंगाना के सेंटर पॉइंट से रेडियल पाइपलाइन डाल के मूसी को मिलाना चाहिए। उसका खर्चा इनके बहुत बड़ा खर्चा नहीं होता हो। ड्रेन अलग होना चाहिए, रेन ड्रेन अलग होना चाहिए, रेगुलर ड्रेन अलग होना चाहिए, रेन ड्रेन अलग होना चाहिए। रिवर्स कैम्बर रोड्स बनाना चाहिए। क्या तकलीफ हो रही है आपको? मैं एलबी नगर सेंटर से आपको नागौल का मूसी नदी कितना दूर है? 3 किलोमीटर है आपको। 3 किलोमीटर आप जो है सो रिवर्स कैम्बर रोड बना के पैरेलल नाला बना दे के उसमें मूसी में मिला दिए तो क्या कोसा घर डूब जाता? कोसा रोड पे पानी रहता। उसी तरह सिटी में बहुत जगह एरिया है, ये जो रिवर्स कैम्बर बना दे के नाला, पैरेलल नाला से मूसी को बनाने के लिए, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट की अपोजिशन की नीयत में खलल है। इन लोग पब्लिक के हेल्प के लिए काम नहीं करना चाह रहे। अपने तेलुगु में बता रहा हूँ, असमदीला लाभम गुरिंची अपने पसंदीदा लोगों को फायदा करने के लिए काम कर रहे हैं इन लोग। जो भी बजट है, तेलंगाना आवाम का पैसा है 2 लाख करोड़, उसमें 5,000 करोड़ करे तो हमेशा के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अभी तेलंगाना हैदराबाद में जो है सो 5,000 करोड़ का नुकसान हुआ बोल रहे, वो नुकसान का पैसा लगाए तो भी हो जाता। पब्लिक कंट्रीब्यूट करती है। आप रोड वाइंडिंग कर रहे, बिल्डिंग तोड़ रहे, क्या नाले को नहीं देते लोगों को जगह? एक नाले को कितनी जगह चाहिए अंडरग्राउंड में? 1-2-4 फीट की जगह चाहिए। आप 20-20 फीट 50-50 फीट की बिल्डिंग तोड़ के रोड के लिए ले रहे हैं आप। नाले के लिए अंडरग्राउंड में नाला नहीं बना सकते आप। तो ये क्या है, गवर्नमेंट के नीयत में खराबी है। इन लोग जो है सो अपने पसंदीदा लोगों को मिल बांट के गवर्नमेंट पब्लिक का पैसा बांट लेके खा रहे। SRDP बोल के प्रोजेक्ट बताए, मगर वो प्रोजेक्ट में पब्लिक के फायदे से ज्यादा उनके दोस्तों का, उन लोगों का फायदा है। हम डिमांड कर रहे हैं कि जरूर ये जो प्रोजेक्ट है
रिवर्स कैम्बर रोड पैरेलल नालाज मूसी को रेडियल कनेक्ट होना चाहिए। ये अगर हुआ तो हमेशा पब्लिक का नुकसान कम होगा। और एक बात बता रहा हूँ, आज न्यू सिटी में मेट्रो रेल है, अभी नीचे पानी है बोल के लोग मेट्रो में जा रहे हैं। ओल्ड सिटी की बदकिस्मती है कि ओल्ड सिटी में मेट्रो रेल नहीं है, उनका डिस्टेंस जस्ट 10 या 12 किलोमीटर है। वो प्रोजेक्ट का जो है जगह नहीं, कंप्लीटली इन लोग जो सियासती जमाते हैं मिल बांट कर वो जो है सो प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। तो अब बाढ़ आ गया, बारिश हो गई, उन डुबके वहीं मार जाना चाहिए, उसको अल्टरनेटिव रास्ता नहीं रहना चाहिए। न्यू सिटी में क्या है, लोग उन्हें ऊपर से जा रहा, बाजू से जा रहा, वहाँ पे जो है सो उसमें बेचारे डूब के मर जा रहे। ये क्या है, ये दो पार्टियों का फेल्यूर है। इन लोगों को पब्लिक जो है सो कंपलसरी एक दिन ना एक दिन जरूर जवाब देगी। हम आवाम के साथ रहेंगे, आवाम के लिए आवाज उठाएंगे हम। वंडरफुल। खान साहब, आर यू देयर? खान साहब, बड़ा अच्छा जी, गफर साहब का अच्छा सजेशन है, होना चाहिए अलग अलग ड्रेन जो है दोनों वाटर ड्रेन उसका। और आप डिमांड कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी ये डिमांड उत्तम कुमार रेड्डी पीसीसी की तरफ से डिमांड है कि 25 लाख रुपए जो एक्सग्रेशिया है वो देना चाहिए। और ये जो लाख रुपए का तमाशा जो बोले के बहुत अच्छी बात है। देखिए सर, अभी कुछ भी नहीं मिलता है। ये लोगों को मतलब रिश्वत देने का ऐसा नजर आ रहा है कि रिश्वत के तौर पे दिया जाए 10,000 रुपए ले जाके कैश देना, जबकि अभी कोई आपकी बात में, डॉक्टर साहब की बात में बिल्कुल सहमत हूँ कि अभी आप टोटल असेसमेंट नहीं कर सके, क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, कैसा हुआ। और आप जैसे लोगों के मुंह बंद करने के लिए और ये मीडिया को दिखाने के लिए कि भाई आप गाड़ी पे बैठकर पैदल फिरकर 10,000 रुपए ले जाके, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गाड़ी पे बैठ के ले जाके 10,000 रुपए बांट रहा, वो भी गवर्नमेंट के दिए हुए। तो आप सोचिए आपके मतलब उनका मंशा क्या है, लोगों की आवाजों को दबाने की कोशिश है। और हमारा डिमांड कांग्रेस पार्टी कह रहा है 25 लाख, कम से कम जो ज्यादा डैमेज जो बिल्कुल ही खत्म होगा उनको 5 लाख रुपए मकान के लिए। और उनकी क्योंकि इतने शादियां साहब, ऐसे वीडियोस हैं गरीब, मैंने बच्चों की नेक्स्ट मंथ शादियां होने वाले गरीब फैमिलीज के पास उनका सारा दहेज बह गया, तो 10,000 में क्या जो करेंगे सर? उसको उनको कम से कम मिनिमम, मैं बार बार मैं सोशल मीडिया के थ्रू भी मैं वो कर रहा हूँ कि कम से कम गवर्नमेंट 1 लाख रुपए, क्योंकि उनका बिस्तर नहीं है, आंख पे कपड़ा नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, खाना अगर दे भी दे तो पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, अगर पहनने के लिए मिल जाए तो बिस्तर, सोने के लिए सारा बिस्तर कच्चा हो गया। जो कुछ पैसे जमा करके रखे थे 2,000 4,000 हजारों ऐसे वीडियो है डॉक्टर साहब, अगर आपको भेज दे रहे हैं तो आपकी नहीं भेजिए, तकलीफ है, भेजिए, हम प्ले करके फिर एक शो करेंगे, भेजिए फिर एक, क्योंकि उनको शर्मिंदगी होना चाहिए। ऑलरेडी वो लोग शर्मिंदगी में है, डर रहे हैं वो लोग, इसीलिए भाग गए 10,000 लोग ये बोल के, क्योंकि डरे हुए है, शर्मिंदगी है, पूरा दुनिया देख चुका आज क्या हो रहा हैदराबाद में। रोकने की वजह भी यही थी कि लोग जब अंदर आएंगे, चाहे वो एनजीओ हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, तो वहाँ के जो लोगों का दर्द होगा वो बाहर आएगा तो इनकी जो ये बोलते 50 साल में अवर वर्क अवर आइडेंटिटी, लोगों को पता चलता कि इनका वर्क क्या था, तालाबों को कब्जा करना, इनकी आइडेंटिटी क्या बनी कि सारे जो गरीब लोग जो परेशान हो रहे, ये इनकी आइडेंटिटी बन जाती। वंडरफुल। खादरी साहब, वाइंड अप। अच्छा, मेरे थोड़े सजेशंस है कि वेव लोन इंटरेस्ट ऑफ पुअर पीपल, दैट इज ऑटोज, कार्स और पेटी बिजनेस वालों का वेरी गुड वेव करना चाहिए। और दूसरी चीज जो है 10 लाख रुपए फॉर डेड, डैमेज हाउसेस के लिए 5 लाख रुपए, पार्शियली डैमेज हाउस है 3 लाख रुपए, और फ्लड अफेक्टेड जो घर जो बह गए सामान वगैरह, उनको आप जो है 10,000 रुपए दे रहे, कम से कम 50,000 रुपए देना। जैसा कि मेरे भाई अभी खान साहब बोले कि भाई हर चीज बह गई, कपड़े बह गए, बर्तन बह गए, फ्रिज हो, मशीनरी हो, मशीन हो, छोटे मोटे सब बह गए, ना सोने को है, ना पहनने को है, ना खाने को है। तो ये 10,000 में क्या, झाड़ू सफाई कराने के लिए 5,000 रुपए से ज्यादा खर्चा होता, 3 फीट मट्टी भर गई है। तो इसके लिए और जो है जो भी रेस्पॉन्सिबल पर्संस है उनके खिलाफ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के तहत केस बुक होना चाहिए। और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी चेयरमैन साहब, सीएम साहब है, और ही मीटिंग कन्वीन करना, एक्शन लेना। और बालापुर में लोकल कॉर्पोरेटर जो है स्लूस वॉल खोलने के बजाय
ब्रीच कर दिया बंद को, राइट जिसकी वजह से पूरे जो है लोकेलिटीज बह गए, राइट तो उसके खिलाफ कार्रवाई, केस बुक होना चाहिए. राइट Police need not wait for a complaint. राइट It has or whether government exists in old city, राइट that CM साहब has to prove. So far we are feeling that वहाँ पर गवर्नमेंट नहीं है, जागीरदारी निजाम है. और अब तो जागीरदारी निजाम में ये है सीएम साहब भी कि साहिबजादे और हमारे एमपी साहब दोनों मिलके फिर रहे, और अकबर साहब मिलके जो पैसे बांट रहे. राइट तो ये जागीरदारी निजाम का है, कोई जो है वो नहीं है राइट कि आवाम की भलाई बहबूद का क्या प्रोग्राम है. राइट दे शुड कम आउट विद अ प्लान. राइट खाली सिर्फ पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट से दे रहे. सेंट्रल गवर्नमेंट का भी काम है, राइट दे शुड रिकमेंड एक्शन अगेंस्ट कल्प्रिट्स राइट in besides giving funds also. राइट वंडरफुल Otherwise it will be their failure also. It will be a waste of funds again. రైట్ విత్ యువర్ పర్మిషన్ ఐ విల్ వైండ్ అప్. సో ఇది ఈరోజు చర్చ. చాలా స్పష్టంగా ఆధారాలతో హైదరాబాద్లో ఏమవుతుంది, మూసి అటువైపు చూసాం మనం ఇన్ని రోజులు, మనం మూసి ఇటువైపు కూడా ఎంత ఘోరమైనటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అందరూ మన వాళ్ళే, రాజ్యాంగం అందరికీ సమాన హక్కులు ఇచ్చింది. ఒకరు నా జాగీర్ అనుకొని 50 సంవత్సరాల నుంచి ఈ విధంగా ప్రజలను ఇబ్బంది పెడతా ఉంటే ऊपर वाला मेहरबान है. కానీ एक ही दर्द है, इनोसेंट लाइफ्स चले गए, और जो भी कोरोना के बाद में थोड़ा बहुत कमाई था वो भी लुट गया, लोग डूब गए. यही एक दर्द है. और साथ में हेल्थ बड़ा प्रॉब्लम है अभी, क्योंकि कोरोना के बाद में जो भी कोरोना फीसेस में हैं, जो हम पैखाना मोशंस में जाते हैं, ये सब CCM भी हमारे हैदराबाद वाले ही बताए कि उसमें ज़्यादा पैमाने में है. अगर इस तरह का अगर रिपोर्ट सही है तो, और ये नालों में आपको मालूम है फार्मेसी कंपनीज किस तरह की ఈ छोड़ रहे हैं अंदर. సో ఇవన్నీ ఏవైతే ఉన్నదో విషం నాలలో మూసిలో ఇప్పుడు అవన్నీ ఇండ్లకు వచ్చింది. కాబట్టి ఈరోజు ఆరోగ్యం కూడా పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఎందుకంటే డెంగీ వల్ల జ్యుడిషియల్ ఆఫీసరే చనిపోయింది ఖమ్మం, లాస్ట్ టైం చూసాం. దోమలు రావచ్చు, ఈగలు రావచ్చు, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिज़ॉर्डर्स, डेंगी, मलेरिया, क्या नहीं, और कोरोना के ऊपर कुछ भी हो सकता है. इसीलिए आप सतर्क रहिए, टेक केयर. पहले हम जीना चाहिए, और ये जीने के लिए विथ डिग्निटी. दिस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी. आर्टिकल 21 जो भी है ये हमारा हक है, और सही तरीके से ईमान से जीने का हक हमारा है. किसी बाप का राज नहीं है. डरिए मत, ఎవరి తలం కాదు, మీరు బెదరకండి. మనం బతికేది ఇజ్జత్తోనే బతుకుతాం. డోంట్ ఫియర్, వీఆర్ దేర్ విత్ యూ. సీ, ఆల్ గుడ్ పీపుల్ ఆర్ దేర్ విత్ యూ, అండ్ వీ హ్యావ్ నథింగ్ అగేన్స్ట్ ఓవైసీ ఆర్ చంద్రశేఖర్స్, కేసీఆర్స్ ఫ్యామిలీ. యు ఆర్ రూలర్స్, యు హ్యావ్ బీన్ ఎలెక్టెడ్ యాజ్ కార్పొరేటర్స్, యు హ్యావ్ బీన్ ఎలెక్టెడ్ యాజ్ member of legislative assemblies, you have been elected as member of parliament. ये आपका ये नहीं बनता. Is it not your duty to rescue people? That is why we are trying to bring everything to your notice, but still you have not acted. That is why we have played videos of our honorable chief minister Kalvakundla Chandrasekhar Rao. 2014 what he said, 2015 what he said, 2016, 2017, including you quoted Raj Bhavan, Istanbul, Dallas. What happened? And even in 2016 you said with just 11,200 rupees Hyderabad will have new drainage and storm water drains. Who stopped you, Kalvakundla Chandrasekhar Rao ji? 4 years. If you had done that, నీవు ఆ రోజుగాన ఇవి చేసి ఉంటే ఈరోజు బేబీ సుమేధా నుంచి ఇంతమంది చనిపోయేవారా? దానికి బాధ్యత మీది కాదా? మళ్ళీ మీ ఫ్రెండ్లీ అపోజిషన్ పార్టీ ఆల్ ఇండియా మజ్లిస్ ఇత్తెహాదుల్ ముస్లిమన్ బాధ్యత కాదా? ఈరోజు అపోజిషన్ లీడరు, పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ చైర్మన్ కూడా ఆయననే. అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ, యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ పీపుల్. యు ఆర్ పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ చైర్మన్ బిసైడ్స్ అపోజిషన్ లీడర్. వెన్ కల్వకుంట్ల తారక రామారావు, అవర్ హానరబుల్ మున్సిపల్ మినిస్టర్, పురపాలక శాఖ మాత్యులు, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మాత్యులు కూడా, on the floor of the assembly he is stating he has spent 67,150 crores as capital expenditure from 2014 to 2020, and with revenue expenditure it is going beyond 1 lakh crore. Mr. Akbaruddin Owaisi, Asaduddin Owaisi, you are a barrister from London. What should I tell you? हम क्या बताना आपको, साहब बताइए. आप इतना
1 लाख करोड़ रुपए किधर खर्च किए कल्वकुंटला तारक रामाराव, ये पूछने का आपका फ़र्ज़ नहीं बनता? आप अपोजिशन लीडर नहीं है क्या? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चेयरमैन नहीं है क्या? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, क्यों नहीं बात कर रहे आप? ये पैसा किधर गया? किसके जॉब में गया? किसका बाप का पैसा है ये? लोगों का टैक्स का पैसा। कोरोना के समय में जब इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बढ़ रहे, जब प्रॉपर्टी टैक्सेस बढ़ रहे, तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आप चुपचाप बैठे हुए हैं। आज वो प्रॉपर्टी टैक्स आप लेने के बाद आज ये हैदराबाद में क्या हो रहा है, क्यों हुआ? सर्विस किधर है आपका? मानसून के पहले मेजर्स क्या लिए आप? जब असेंबली फ्लोर में 2020 में ये बताता कल्वकुंटला तारक रामाराव जी, आप क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे? बिना 10,000 के चेक लेके गाड़ियों पे घूम रहे, क्यों? क्योंकि आप भी टीआरएस के जैसे डरे हुए हैं, क्योंकि आप गलती के ऊपर गलती करते गए। आज जो भी है लोग बहते गए, उनके घर बह गए, वो लोग बह गए। आज पूरा हैदराबाद पूरा जान गया क्या हुआ, क्यों हुआ और इसकी वजह कौन है। आप लोग नहीं है क्या? किधर गए तालाब, किधर गए नाले? मूसी क्यों इतनी चौड़ी थी, आज इतनी क्यों हो गई? इसके जिम्मेदार कौन है? जीएचएमसी आपके हाथ में है। ये कांग्रेस से आपका समझौता, टीडीपी से आपका समझौता, आज टीआरएस के आपसे समझौता। आपको नहीं तो हम किसको सवाल करना? असदुद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बोलिए आप। टीआरएस का मिस्टेक है, क्यों नहीं आके बताते आप? फिर वो दिए 10,000 क्यों जाके बांट रहे? उन्हीं के साथ में राजा के साथ क्यों जा रहे आप? छोटे राजा का जनवाड़ा में फार्म हाउस है, वो फार्म हाउस किस तरह है हम जेनमेड बोल के भी बताए। राम गेडेला, किरण गेडेला, शैलिमा कल्वकुंटला जेनमेड कंपनी भी बोल के भी बताए, क्योंकि सीएम साहब शर्मिंदा से ये हो रहे बोल के हम उनको मदद कर रहे हैं। साहब ये करप्शन क्विड प्रो को है, हंड्रेड्स ऑफ करोर्स इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशंस हम जैसे लोगों के लिए था। आज हमको तनख्वाह नहीं है, लेकिन हंड्रेड्स ऑफ करोर्स एडवर्टाइजमेंट्स वहाँ चले गए। उसके ऊपर आप कुछ बात नहीं करते। और यही शो के माध्यम से हम आपको चैलेंज भी किए। 2014 के पहले आपके इलेक्शन एफिडेविट्स में क्या था आपके पास, इंक्लूडिंग AIMIM? आज इतना 2018 लेटेस्ट इलेक्शन एफिडेविट में इतना आपके पैसा कैसे का आया, कहाँ से आया? सुमेधे के फादर क्लियरली बताए 14 lakhs कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव जी, आपके डॉटर इन लॉ शैलिमा कल्वकुंटला के नाम था। आज करोड़ों रुपये किस तरह हुआ साहब? आप भी बताइए हमको। हम भी कमाना चाहते, हम भी आपके जैसे महलों में रहना चाहते। ये हमारा हक नहीं बनता? ये संविधान हक नहीं दिया हमको? संविधान ने सबको एक तरह की रुपया आपको ये करने के लिए बोला था, क्योंकि आप संविधान के ऊपर प्रमाण करके आज मुख्यमंत्री बने हो, MLA बने हो, कारपोरेटर बने हो या MP बने हो, वो संविधान हमारा है। इट इज़ वी द पीपल। ये संविधान हमारा है। మాది మేము ప్రజలం। ఆ రాజ్యాంగాన్ని మాకు మేము సమర్పించుకున్నాం। ఎవడ్రా మీరంతా? మా పైసలు కావా? మేము కొట్టుకుపోవాలనా? మేము చావాలనా? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग पीपल, चौकन्नी हो जाइए। ये संविधान हमारा है और ये संविधान हम अपने लिए बनाए और हम अपने आप को समर्पित किया। इसीलिए वी आर ए कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। जागो लोग, कम जागो, ప్రజలారా మేల్కొనండి। మనమే రాజ్యాంగ వ్యవస్థ। ఏ పోలీసు, ఏ మున్సిపల్ కమిషనర్ ఎవడు కాదు, మనం లేచి నిలబడితే వాడు డెఫినెట్గా మనకు జవాబు చెప్పాలి। పాలకుడు అయినప్పుడు జవాబుదారీతనం ఉండాలా, పారదర్శకత ఉండాలా పాలనలో। దాన్నే మనం చేస్తూ ఉన్నాం। ప్రజల ప్రాణాలు పోయిన తర్వాత, ప్రజల మానాలు, రెయిన్ బజార్లో ఒక అమ్మాయి, దళిత అమ్మాయి చనిపోతే, అసదుద్దీన్ ఓవైసీ, అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ, యూ సే యూ ఫైట్ ఫర్ దళిత్స్. Where the hell is your party? What happened? Even no one speaks of that. Where is TRS? Then what happened in Moinabad? చిన్న అమ్మాయిలు, ముస్లిం అమ్మాయిలు రేప్ చేసి చంపేస్తే ఎందుకు మాట్లాడతలేదు ఆల్ इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन? यूपी के लेके आ दिया पतरास के। हमारे पीछे मोइनाबाद में क्या हुआ, रेन बाजार में क्या हुआ, बात क्यों नहीं कर रहे आप? डीजीपी గారు మీరు కూడా జవాబు చెప్పాలా? పోలీస్ ఫోర్స్ ఎవరి కోసమో కేసులు పెట్టాలని వెయిట్ ఎందుకు చేస్తూ ఉన్నారు? ప్రజల డబ్బుతో కదా నడిచేది వ్యవస్థ। ప్రజలు ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పుడు
ప్రజలు ఈ విధంగా ఎవరు వస్తే వాళ్ళని ఓల్డ్ సిటీలో కొడుతున్నప్పుడు, బెదిరిస్తున్నప్పుడు మీరు ఏం చేస్తున్నారని ఈరోజు ప్రజలు ప్రశ్నిస్తున్నారు. ప్రభుత్వాలు శాశ్వతాలు కావు. ఏ ఒక్క పార్టీ, గుర్తుపెట్టుకోండి, లల్లు ప్రసాద్ యాదవ్కి ఏమైంది, శశికళకి ఏమైంది, మధ్యలో ఎవరున్నారు, అవినీతి బాట పట్టిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ రాజ్యాంగం, చట్టం ఆధారం ద్వారా వారికి శిక్ష ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పడుతుంది. దాని గురించి ప్రజలారా మేల్కొనండి. మంచి మంచి వీడియోస్ మీరు పంపుతున్నారు. ప్రతి వీడియోను మిమ్మల్ని రక్షించడానికే మేము ప్లే చేస్తాం. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, డాక్టర్ టీఎస్పీఆర్ షో, డాక్టర్ టీఎస్పీఆర్ ఛానల్ వ్యక్తిగత వైరం లేదు, పార్టీల పట్ల శత్రుత్వం లేదు. नो एनिमिटी टुवर्ड्स एनी इंडिविजुअल, नॉर एनिमोसिटी टुवर्ड्स एनी पार्टी. किसी अजद से हमारी जातीय दुश्मनी नहीं है, ना कोई पार्टी से. हम केवल संविधान, कानून और आधार, రాజ్యాంగం, ఆధారం, చట్టం, ఈ మూడే మాకు దాన్ని ప్రజాహితంలో इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट कौम के इसमें ही हम आज प्रश्न करते हैं. यही हमारा हक है. हम आपके साथ में हैं. थैंक यू जेंटलमैन. हैव ए गुड डे. थैंक यू. थैंक यू डॉक्टर साहब. थैंक यू डॉक्टर. नमस्ते. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू.